Hello, everybody. Welcome to Impetus for this very interesting subject that is Python programming. I'm Rishikesh and I'll be conducting this particular batch for you. Before we start with the course, let me just give you a brief about Impetus and how this course will be conducted. And then we can proceed with the further discussion. So today, I'll not be discussing actually the Python as a language, but we'll understand a few things about Python. Why is it a right choice that you have made to learn Python as a language? Many of you, this could be the first language that you're learning. And for amongst you, there may be a number of people who may have learned other programming languages and now have decided to learn Python. So I know for sure we are going to have a mix of students over here. Although we're going to have a mix, we will make an assumption that you do not know anything about the programming. And with that assumption, we'll start with this course. So those who come from programming background, some places you may find we are going a bit slow. But then have patience, because every language is different, and especially Python is going to shatter a lot of the notions that you may have in your mind regarding programming mein aisa hi hota hai. But you'll find Python does a lot of things in a different way. So we'll assume that you do not know anything about Python. And from that stage, we will take you to an expert level over a period of time. Our objective is to cover Python as a programming language so that later you can start applying this particular skill that you have gained in various domain areas, depending on which area you would like to go. So I'll talk about the scope that is there. We'll talk about how Python works. So the first 3 sessions will be devoted to understand what is Python and how is it different than other languages. So you should not be in a hurry. Sir, Python ka course shuru kijega. This is very much a part of the course to understand what is Python. Otherwise, you will make an assumption about this language. Suppose you come from a C background or you come from a Java background. So you'll have some kind of pre-notions in your mind. So you may go ahead with the same assumption कि ऐसा ही होता है. But the fact of the matter is, it is very different. So why is it very different and how is it very different is what we'll be discussing first. And once that discussion is done, say after 3 sessions, then we'll start off with the first topic in Python, that could be the data types and other things. So these are more of an introduction that will give you an understanding as to what this Python ecosystem is all about. How does Python run? What are the advantages of Python and what are the disadvantages of going in for Python? In which cases, which are the areas where you can use Python? What are the opportunities which are existing in Python? So once you know that thing, that will generate an interest and you could decide later how you are going to use Python in the domain where you will be making your career. So let's have a quick introduction. Impetus was founded in 1999, and since 1999, we have been engaged into training activity, software training, development, consultancy for corporates as well as for students. We have been doing it since 1999. It's almost 22 years now. We have been in the past, the ATC, that is Authorized Training Center, for almost all the technologies like Java. Today we are for C, C++ as well. For Python, we are an Authorized Training Institute. We were also a testing center earlier, where we not just trained the candidate for international certification, we also used to conduct exams. Nowadays, we do not conduct exam, but we do train candidates for international certification as well. So our course is mapped to international curriculum. So I'll be showing you the international curriculum and how our course is mapped. Today, after the session, you will receive a mail from my side, wherein you will get the complete syllabus as to what we are going to cover up. Along with the syllabus, you will also find some useful links. Make sure that you read the mail carefully and also visit all the links, because that links will give you some kind of information as well. So we were partners with Autodesk, those who come from mechanical background, those who are aware of engineering design and other things. So we are partners with Autodesk for those engineering design and other kind of solutions when it comes to the CAD and other things. We are partners with Oracle for Java and SQL and PLSQL, the RDBMS products. We are partners with PTC for Creo, the very popular software when it comes to drawings, mechanical drawings. Then what should be of your interest is, we are currently partners with Python Institute.
and we provide international certification. We are the first one in Pune to be authorized by Python Institute to conduct certification programs for C and C++. For Python. Same is the case with C, C++ as well. So we are authorized. So every student who passes over here will definitely get some kind of benefits when he thinks about going in for international certification in future. Companies do demand certifications. So if you are Impetus student and tomorrow if you go in for certification, you will definitely have some benefits, at times even discounts in fees as well when it comes to the certification exam. We are partners with the C++ Institute, and we are also authorized partners for C++ and C. So we are authorized institute for Python coaching, and we are also an authorized institute for C, C++. So you can prepare yourself for the international certification in Python, in C, C++, even other technologies, but especially for these, what may be of your interest currently. And if anybody amongst you is from commerce background, you may very well be aware of a software called as Tally, which is so very commonly used. We are also authorized partners with Tally. We are a Tally Academy. And a brief intro about myself. I am Rishikesh, and I'll be conducting this particular course for you. I have more than 20 years of experience when it comes to training, application development, programming, all those things. And I have been engaged into training. Training has been my passion. But along with training, I have been also involved into consultancy and also software development. So that's a brief about myself. We plan to start off with introduction to Python. So before I start off with this language as a Python, there are a few things that I would like to share with you. How will this course be conducted? These are not video recordings that we are going to have. If you're really interested in video recording courses, we already have video recordings as well. This is going to be a live session. Live session means I'll be delivering the session live to you every day as if you are in the classroom. And all of you have an opportunity to ask a question at any time. We do not mute anybody's audio. Neither do we put off a video on our side. You can turn on your audio, you can turn on your video at any point of time, and you can ask a question. So any topic that I'm discussing, wherever there is a query, the best time to ask a query or get your doubts cleared is when the doubt comes to your mind. ये नहीं कि लेक्चर के बाद पूछूंगा या कल देखूंगा या कल देखूंगी. I'll try and search it on my own, and you'll Google. And when you go Googling, you're going to get lost, because every small thing that you try and Google, you're going to get million pages. And then you read some rubbish data over there, which is absolutely not authentic. So at least till the course gets completed, I'll be showing you which are the trusted sources that you can rely upon. You'll find me visiting those sources every now and then during the course, because I want you to build that habit of visiting those trusted sources to see what is the latest thing that's there in Python and how to use it. Because nobody in the world can or knows or has covered up entire Python. It's vast. It's like you'll be surprised when I tell you the count of number of modules which are there in Python. You'll be surprised, shocked. Agar aap Java या C++ के background से आ रहे, so it's going to be a shock for you. That kind of support Python ecosystem provides. So have patience. Why is it that I'll be visiting some sites every now and then? You'll understand very quickly as I tell you the features of Python. So this course is live sessions. So I'm there live every day talking to you. And my promise to you is any query that you have will not go unanswered. कोई भी doubt आपने पूछा है, that will definitely be answered there and there itself. Okay. There is a very little possibility कि किसी दिन आपने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है. But otherwise, I have been following Python right from the day when it has been incepted. जब से आया है Python, तब से मैं उसे follow कर रहा हूँ. तो I will be in a position most of the time at student level, whatever questions you are asking, as language goes, my promise to you is your doubts will be answered there and there itself immediately. We will not go to the next topic unless that doubt is not answered. हाँ, one case where I may not answer the query immediately. अगर वो अगले टॉपिक में या आगे वही टॉपिक आने वाला है, so I'll not spend my time answering it if it is not the right time to answer. Otherwise, all your queries will be taken care of. So that's a live session that you have. So you can just raise your hand. If I'm speaking, you can raise your hand. Hand raise करने के लिए you have to get accustomed to this Zoom interface. And I hope all of you are aware of this Zoom interface. Okay, Dhruv has already raised hand. Number of people have already raised hand. Okay, you all know about it. So you just have to raise hand. You have to unmute yourself.
and you can interrupt me in whatever I'm saying. You can interrupt me and ask a question immediately. So shouldn't bother at all. That's one thing. But in this course, while I teach this particular course, you have to carry a notebook where you will take your notes. तो ये नहीं कि आए और पिक्चर देखा और घर चले गए. That shouldn't be the case. You should be involved. Involvement is shown by two things. You take your own notes. That's the indication that you're involved. And then you ask questions. That's another indication that you're involved. Because क्वेश्चन वही पूछ सकेगा जो सुन रहा है, जो रिवाइज कर रहा है, जो उसमें इन्वॉल्व है, वही क्वेश्चन पूछ पाएगा. तो आई अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस. तो डाउट्स आने चाहिए. डाउट्स नहीं आ रहे तो उसका दो ही रीजन हो सकता है. या तो आप इतने स्मार्ट हो कि आपको मुझसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. सेकेंड इज यू आर नॉट इन्वॉल्व, यानी आप जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो. Because moment you start learning, best of the peoples have doubts. Even today, when I start exploring new features in Python, I'm also having so many doubts. I have to spend some time. आपके लिए there is this resource Rishikesh, which is there to solve your queries. तो जब भी query आए, immediately ask those questions and get those things clarified. So how will this course be? Normally, my way of teaching is there are a number of you who are my ex-students, but there are many of you who are joining here for the first time. तो जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए normally whenever a topic has to be introduced, I first give an introduction to the topic. थोड़ा सा स्टोरी हम लोग बिल्ड करते हैं. टॉपिक की जरूरत क्या है, इसका फायदा क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्यों सीखना है. That's what I do. That I do with the form of a presentation. You'll find me using presentations. Once that topic has been discussed, then I give a demonstration. यानी जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसी का एक कोड लेते हैं और उसे डेमोन्स्ट्रेट करके प्रूव करते हैं कि ऐसा ही है क्या, कैसे यूज करना है, वो फीचर कैसे यूज करना है. वी डेमोन्स्ट्रेट, वी ट्रेस द कोड लाइन बाय लाइन. ऐसे कोड हम लोग रन करके देखते हैं लाइव. देन वंस दैट हैज बीन डन, देयर आर सम असाइनमेंट्स व्हिच आर देयर, देयर आर सम क्विजेस व्हिच आर देयर, देयर आर नोट्स व्हिच आर देयर. तो वेयर आर दिस एंड हाउ आर दे गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू? तो वी हैव अ ई-लर्निंग पोर्टल दैट इज देयर. तो आई जस्ट वांट टू शेयर. सो अगर ये प्रेजेंटेशन हो गया, मैंने कोई टॉपिक समझाया आपको, तो आफ्टर दैट we expect you, after I have given a demonstration, I normally use various IDs. तो जो भी ID मैंने यूज किया रहेगा उसके थ्रू अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं, after that whatever topic that we have discussed, suppose today we are talking about history of Python, so you have to visit our e-learning portal. इस e-learning portal पे once you take an admission, you will get an access to the contents over here. तो इस यहाँ क्या मिलेगा आपको? Let me just quickly show you. Suppose you join for a Python programming course. So if you join, these are various courses that I teach. तो अगर आपने Python programming course के लिए join किया है, तो you will have over here various topics. आज का टॉपिक है समझो history and features of the Python language. तो उसका नोट यहाँ आपको immediately मिल जाएगा. तो आपका काम क्या है? Once we finish with this particular thing, you are required to unmute yourself only when you have to ask a question. तो अगर ये टॉपिक दिखाई दिया तो आपको इस टॉपिक पे क्लिक करना है. क्लिक करोगे, इट विल डाउनलोड अ नोट. सारे नोट्स का एक ही पासवर्ड होता है, इम्पिटस. तो आई कैपिटल या स्मॉल रहेगा, इम्पिटस. तो यू विल गेट अ नोट. तो आज के टॉपिक का ये नोट रहेगा. तो वॉट एवर कॉन्सेप्ट दैट आई डिस्कस, ये नोट रहेगा आपके पास. बट ये नोट के भरोसे नहीं बैठना है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आई टॉक अबाउट जो नोट्स में नहीं रहेगा. तो व्हेन आई एम डिस्कसिंग, आई विल डेफिनेटली गो बियॉन्ड दिस नोट्स आल्सो. क्योंकि कोई क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछता है एंड दैट क्वेश्चन के बारे में फिर मैं कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, वो नोट्स में तो नहीं रहेगा. बिकॉज हाउ डू आई नो कौन क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो इन दैट केस वो एडिशनल नोट्स आपको खुद होके नोट डाउन करना है. और ये रीडिंग के लिए तो आपके पास है ही. समझो पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक न्यूमेरिक टाइप्स है, तीसरा टॉपिक आइडेंटिफायर है, सबके नोट्स है. ये टॉपिक्स डिस्कस अंदर क्लासरूम. उसके बाद जो भी एग्जांपल्स लूंगा, ये उसके जुपिटर नोटबुक्स आपको शेयर करने मिल जाएंगे. समझो आज मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन लिया, तो डेमोन्स्ट्रेशन लिया तो इसका ये एक पूरा टॉपिक क्या था और जो डेमोन्स्ट्रेशन लिया उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी. कैन यू सी दैट? जो भी डेमोन्स्ट्रेशन लूंगा उसकी आपको एक कॉपी मिल जाएगी. यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट. तो आगे जाके कोई भी स्क्रिप्ट हमने लिए रहेंगे, तो व्हाट आर टॉपिक्स के स्क्रिप्ट्स लिए हमने, स्ट्रिंग का टॉपिक डिस्कस किया, लिस्ट का टॉपिक डिस्कस किया, आपको एक आर्काइव मिलेगा. उस आर्काइव में वो सारे फाइल्स रहेंगे. सपोज ये स्ट्रिंग्स के फाइल है, तो समझो मैंने इसे डेस्कटॉप पे रख दिया, कहीं तो डेस्कटॉप पे रख देता हूँ. तो समझो मैंने कहीं तो डेस्कटॉप पे रख दिया, डेस्कटॉप पे, एंड यू विल फाइंड ऑल द फाइल्स व्हिच आर देयर रिक्वायर्ड. जो भी डिस्कस किया रहेगा वो प्रोग्राम्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे. तो इफ यू गो टू दिस पर्टिकुलर हेडर, या तो समझो हमने स्ट्रिंग के टॉपिक्स 4 प्रोग्राम डिस्कस किए, तो चारों प्रोग्राम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. वॉट एवर वी डिस्कस, तो हम जो ये डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट जो भी डिस्कस करेंगे, ये प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे. आपको ये डाउनलोड करना है और
वापस यू हैव टू प्ले अराउंड विद दैट पर्टिकुलर कोड, उस कोड में चेंजेस करके देखना है आपको, सब कुछ करके देखना है। ये हो गया नोट्स के बारे में। नोट्स के बाद आपके पास रहेंगे असाइनमेंट्स, जो भी टॉपिक बन जाएंगे उनके असाइनमेंट्स रहेंगे। इट इज योर ड्यूटी, आपको असाइनमेंट सॉल्व करके यहीं सबमिट कर देने। तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा सबमिट करो, आपका जो सोल्यूशन रहेगा आपने सबमिशन करना है। लास्ट बैच के अभी 27 स्टूडेंट्स ने ये सबमिशन किया है, तो जो भी रहेगा आप सबमिशन कर सकते हैं आफ्टर यू हैव फिनिश्ड विद दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट। आफ्टर दैट यू आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज एडिशनल रीडिंग, यानी बेनिफिट्स ऑफ नोट टेकिंग, नोट्स क्यों लेना है, पाइथन के पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करना है, देयर आर लॉट ऑफ एडिशनल नोट्स दैट हैव एडेड हियर। और सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी में असेसमेंट। टॉपिक खत्म हुआ, टेस्ट दे दो, टेस्ट देके अपना खुद का स्कोर आप ही खुद चेक कीजिएगा। तो सपोज हियर आई गो, ये 32 स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड दिस पर्टिकुलर कोर्स, आई कैन आल्सो गो ऑन टू अटेम्प्ट दिस कोर्स। तो ये टॉपिक आएगा तो मैं ये यहाँ जाके रिपोर्ट देख सकता हूँ, क्या स्टूडेंट्स ने, कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए, व्हाट आर देयर स्कोर्स, ऑल दोस थिंग्स आई कैन एक्चुअली सी। तो आई कैन सी धीरज हैज अटेम्प्टेड इन दिस कोर्स, और धीरज ने 10 मिनट में 10 मिनट 12 सेकंड में किया है, और 10 में से उसको 8.50 का स्कोर आया है, गुड स्कोर। निखिल ने क्या स्कोर है, आई कैन सी एवरीबॉडी स्कोर। तो यू विल ऑल्सो गेट टू सी योर ओन स्कोर। तो ऐसे असेसमेंट टेस्ट है वो आपको खुद होके देने हैं। तो दिस इज आवर मैकेनिज्म थ्रू विच कंटेंट डिलीवरी होगा। एवरीथिंग हैज टू गो टुगेदर, मींस आपको लेक्चर रेगुलर अटेंड करना है। आफ्टर यू हैव अटेंडेड द लेक्चर रेगुलरली, whatever topics that I discussed के notes आपको खुद लेने हैं। Once you take those notes, after that you have to do that additional reading whatever I have given, try out those examples which will be shared with you, and then give a test. If you follow this cycle, there is no reason why you shouldn't be very very confident about this particular technology. At the end of the course, अगर ऐसा हो रहा है कि कोर्स के आगे जाते जाते ऐसा हो रहा है, आपको लगता है ये बहुत सिंपल टॉपिक्स चल रहे हैं, you are mistaken, because the most complex system that has been ever designed in the world is also made up of several small simple components. So you need to start from the scratch, test everything that we learn, try out everything that we learn with those assignments that I have given. That will make you try out whatever you are expected to know. So make sure that you do it, and then I guarantee you success as far as this technology goes. You can master this particular technology. So that is all about course ka syllabus jo hai. Today after the course you will be receiving a mail, and that mail you will have all the detailed syllabus, what all points we will be covering, and that's quite exhaustive. Our course prepares you for international certification. So what is the international certification that we prepare you for? Uska bhi mujhe aapko ek glimpse dene do. So you are ready to appear for the international certification. You are ready to appear for the international certification. If you go in for these international certifications that are there, so what certifications will we prepare you for? There are a number of levels of international certifications which are there. Let me show you the levels which are there. और अपना कोर्स क्या क्या लेवल के लिए प्रिपरेशन करेगा, वॉच इट। एक एंट्री लेवल है, एक एसोसिएट लेवल है, और एक प्रोफेशनल लेवल है। आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट. When I share the syllabus with you, you will find we cover up every part aspect that is there in entry and associate. And believe me, ये जो टॉप लेवल सर्टिफिकेशन का जो पार्ट है प्रोफेशनल, देयर आर सम पॉइंट्स फ्रॉम दिस प्रोफेशनल लेवल आल्सो दैट आर बीइंग कवर्ड विद योर फॉर योर। तो इसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या है, यू कैन सी ओवर हियर। ओके, ऑल दिस टॉपिक्स विल बी वेरी इजीली कवर्ड, 100% हम लोग पूरा कवर करेंगे। देन वी गो टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज देयर, दिस वाज द फर्स्ट लेवल दैट इज देयर, एंड उसके बाद आता है आपका सेकंड लेवल, यह हो गया आपका एंट्री लेवल, दैट्स सर्टिफाइड एंट्री लेवल पाइथन प्रोग्रामर. Once you done this particular certification, then there is the another certification that is there, that is associate level. अगर इस associate level का syllabus देखते हैं तो ये सारे topics अपने course में 100% cover किए जा रहे हैं, 100% ना, without any option. Every point is being covered here. Rather इससे भी ज़्यादा ही cover करेंगे हम लोग. तो every aspect that is there over here will be covered. तो we will prepare you for the 2 certification exams 100%. और normally बाहर जाओगे तो हर एक certification का अलग course रहता है. Here we have combined everything into one. So this course is quite exhaustive. समय देना होगा आपको ताकि आप इस ये लेवल पे पहुंच सके. And from this, which is the most advanced level certification which is there, professional level certification which is there, from here also we cover up most of the things. जैसे PEP क्या है, we cover it up. ये जो टॉपिक्स है, these are the topics, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं. GUI हम लोग कवर कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या नहीं कवर कर रहे, तो there are few things that I may not be covering over here.
ये इसमें से SQLite भी कवर, CSV भी कवर, OS भी कवर, ये सारे कवर कर लेते हैं, कम्युनिकेशन विद द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. दैट मीन्स ये भी ऑलमोस्ट 90% सर्टिफाइड लेवल का फर्स्ट पेपर का 90% भी कवर. दैट मीन्स आई एम गोना प्रिपेयर यू और वी आर गोना प्रिपेयर यू फॉर द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के सारे लेवल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सिर्फ लास्ट के जो है उसका 10% नहीं कर रहे. फ्यू टॉपिक्स लाइक नेटवर्किंग अदर थिंग्स वी आर नॉट कवरिंग. ये नहीं कवर कर रहे हम लोग. दिस प्रॉब्ली विल नॉट कवर एंड ये दिस विल डेफिनेटली कवर. यहाँ से हम लोग पाई टेस्ट, ये दिस इज नॉट अ प्रॉमिस, समटाइम्स वी टेक इट, समटाइम्स वी डोंट टेक इट, डिपेंडिंग ऑन हाउ द बैच इज. So almost 90% for all the certification. That means even if you going for this professional level, इन दोनों का भी 90% सिलेबस हम लोग कवर कर लेते हैं. ये पहले दो तो 100% we cover, and this we cover more than 90%. There are only few topics here and there that we do not take up. Otherwise, we take up everything. So we will be preparing you for the international certification. And take my word, if you follow this course from day one, you don't miss the lectures. You do not have to join for any other training for certification. This will cover everything that you need to know to successfully crack all the levels of certification exam. Take my word, all the levels, because last level के 2-3 ही टॉपिक है जो हम लोग टच नहीं कर रहे. Otherwise we are covering everything for all the levels. So we are going to prepare you for all the levels of certification. Normally जो आप मार्केट में कोर्सेज देखोगे, they will talk only about the first level, entry level, फिर एक दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, 4 कोर्स बना के देंगे. We have bundled everything into one. So you have to have patience. This will not go cover up immediately. It will be around 70 hours के आसपास हमें time लगेगा to cover up all these topics. Last several batches we have covered and we have realized it takes about 72 to 75 hours of time to cover up the batch. And ये repeatedly हो रहा है 70 to 75 hours. 70 to 75 hours में syllabus gets covered. So you have to invest that time, efforts, और वो करोगे. That 70 to 72 hours is the time that I'll be teaching you. Don't assume that 72 hours में master बन जाऊंगा. 72 hours I will be teaching you. You have to put in additional efforts on your own to master this particular course. जितना समय आप खुद डालोगे, that will bring about a difference. So that was a brief about the course, the syllabus. Detailed syllabus मैं आपके साथ share करूंगा mail पे, and you can map it. आप जाके cross check कर सकते हैं, whatever I have listed वो वहाँ है कि नहीं, आप map करके देख सकते हैं. First 2 levels 100%. The next 2 levels, professional के 2 levels में भी 90% we cover up everything. So you can prepare, you can actually go in for the international, all the levels of international certification exam once you go through this particular course. So that was brief about the course. Now we are ready to go ahead. Now if you have a query, you should not hesitate to ask. I understand English, Hindi, Marathi, Gujarati, I understand. You can ask me question in any of those 4 languages. So shouldn't be hesitating. This is not a course in English that you have to ask the question only in English. Media of communication to a larger extent will be English, but I'm not an Englishman that I will not be switching over to some other language. So I am equally comfortable with Marathi, Hindi. I'm equally comfortable. You can ask me question in any of those languages, but if you ask me in English, that's better because then everybody understands. There may be a few people over here who are from North India. There will be somebody from South India, and if you ask a question in Marathi, maybe they will not be in a position to go along what is happening. So we could take English, and however bad your grammar is or however good your grammar is, doesn't matter. This is not an English learning course. So it's a language for us. English, Hindi, Marathi are only means of communication. So do not hesitate. कि what will Vinita think about me? What will Aditya think about me? ये मेरा question silly है क्या? कोई question silly नहीं होता है. Every question has a value because it clarifies some doubts that you have in your mind. So do not hesitate to ask. I rather appreciate you asking questions. So that's the only way the session becomes even more interactive. Otherwise ये वीडियो के जैसा हो जाएगा. फिर अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे to my questions, you can ask me the queries, I'll ask you questions. My questions will be based on whatever we have discussed. और आपका query should be also based on whatever I have taught you. जो मैंने पूछा है उसमें आपको कोई क्वेरी है तो इमीडिएटली आपने मुझे पूछना है, या फिर एनीथिंग रिगार्डिंग पाइथन दैट यू कम अक्रॉस इन द मार्केट और आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत मुझसे डिस्कशन करना है, शेयर करना है. आई एम रेडी फॉर दोस थिंग्स. ओके, बट नॉट बियॉन्ड पाइथन. वी विल स्टिक टू पाइथन एंड प्रोग्रामिंग. बिफोर वी स्टार्ट, let me just quickly understand few things about you. Okay, Shubham has raised his hand. Shubham, you have a question or you're just testing how to raise a hand? If you're just testing, then lower your hand. And if you have a question, ask.
I was just testing, sir. लोअर हैंड, हाँ, उसी पे दोबारा क्लिक करना है, हाथ नीचे भी चला जाता है, दैट्स इट. सो इफ यू हैव क्वेश्चन रेज योर हैंड. अगर आपका डाउट क्लियर हो गया, लोअर योर हैंड. नहीं तो हाथ ऐसे रहेगा तो मुझे परेशानी होगी, अरे ये बंदे को कोई तो डाउट है और मैंने क्लियर नहीं किया. दैट शुडंट हैपन. ओके, आई विल आस्क यू टू रिस्पॉन्ड. तो आपको समझ में आया तो टिक करना है. जस्ट एक्सप्लोर द इंटरफेस विच इज देयर, रिएक्शंस. अगर आपको पसंद आया तो गिव मी अ थम्स अप, नहीं पसंद आया तो गिव अ थम्स डाउन. नो पे क्लिक कीजिएगा. तो देयर आर वेरियस सिंबल्स, लाइक लुक एट दैट नो. कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? नो का सिंबल आ गया है. I can give claps, I can give thumbs up. If you find if I'm going fast, you can ask, request me to go slow. You want to take a break, let us know. Okay, there are various reactions. Use them, all the reactions which are there. हमारे पास कई सारे emojis भी हैं, and you can make use of them as well. But there is no reason why you should laugh at me, unless there is a serious reason for that. Okay, so there are various things that are there. I'll remove. I am going out, and those. Explore the interface, because that's the tool through which we are going to continue. Dhruv has selected go fast, so we can go fast, we can go slow. Okay, Yashwant is also exploring. Okay, so if you use it, I'll get to see what is happening. तो आपको interact करना है और questions पूछते रहना है. We'll require a lot of softwares. तो मेरा जो मेल आएगा उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर की लिस्ट भी आएगी. It's my Google Drive from where you can download all the resources that were required. You don't have to purchase any textbook. That's my responsibility. आपको कोई टेक्स्ट बुक खरीदना नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं है. Python is open source, तो everything that is required for this course I'll be giving it to you. आपको सिर्फ डाउनलोड करना है. अगर आपके यहाँ डाउनलोड का स्पीड कम है तो निगड़ी ऑफिस में आके you can submit your pen drive and take it on a pen drive as well. We don't mind, but डाउनलोड कर लो and you can have the entire ecosystem ready. सबके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए. कोर्स मोबाइल पे ट्राई आउट नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, बट दैट्स, हमें इतना कुछ करना है कि मोबाइल पे सारा काम होने वाला नहीं है. तो यू नीड अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप. कितना पुराना रहेगा तो भी चलेगा, उससे अपना काम बन जाएगा, बट वी नीड अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप कंपलसरी. लेटेस्ट वर्जन पे काम करना है तो विंडोज 10, विंडोज 8 तो कम से कम चाहिए हमारे पास. तो हैव अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप विथ लिनक्स. विंडोज लिनक्स का कोई भी फ्लेवर चलेगा. विंडोज है तो 8 या 10 रहेगा, तो दैट वुड बी वेरी गुड, सो दैट वी कैन कवर अप all the latest versions which are there. Recently, Python का latest version 3.10 has also been introduced. So as this course goes ahead, probably for your batch, for the first time, I'll be taking 3.10 as well. अभी तो आया है. So as I finish exploring that new version, I'll be taking you through the topics that have come in this new version as well. So that was a brief introduction as to how do we plan to go ahead with this particular course. Anybody has a question, you can ask me before I start. किसी के कोई query है तो you can ask me a question. Anything that you want to ask? About the course? Kavya has a query? Yes, sir. Sir, is it necessary to know or have a basic information about any languages like C or C++? Okay, I clarified this right at the beginning. For this course, my assumption is you do not know any programming language. अगर आपको आता भी है तो मैं assume कर रहा हूँ कि आपको कोई programming language नहीं आ रहा है. So I'm going to start with some very basic constructs. जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया है, you may be feeling अरे क्या सर आप बेसिक्स पढ़ा रहे. I'll start with very basic types. डेटा टाइप से लेते हुए if else construct से लूप से लेके all those basic constructs I'm going to cover. Those who have done programming earlier in some other language, C, C++, Java, कोई भी करके आए हो तो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. जो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उनको पहली बार, इफ इट इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, whatever is needed for this first language also you have to build a confidence. वो सब कुछ मैं करूंगा, मगर मैंने जो कहा है आपको वो आपको करना चाहिए. whatever assignments that I give आपको वो सॉल्व करनी चाहिए. नहीं होते तो मेरे साथ डिस्कस करने चाहिए. that will guarantee you success. so prerequisite कुछ नहीं है. this can be your first programming language. जिन्होंने प्रोग्रामिंग में करियर करना है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा वी आल्सो हैव अ कोर्स ऑफ लॉजिक डेवलपमेंट. वो भी उसके साथ करोगे तो थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा. बिना लैंग्वेज के भी लॉजिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, लॉजिक कैसे सोचना कैसे है, उसके बारे में भी है वो सेपरेट कोर्स. 18 घंटे का कोर्स है सिर्फ लॉजिक डेवलपमेंट का, वो भी आप कर सकते हो. अदरवाइज दिस कैन बी अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल. कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं. आपने कभी जिंदगी में प्रोग्रामिंग किया, मशीन ऑन ऑफ करने आना चाहिए, मशीन ऑपरेट करने आना चाहिए, वी कैन स्टार्ट. बट जिनका ये पहला लैंग्वेज है उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत लेनी होगी. एंड इफ यू आर रेडी टू पुट इन दैट एफर्ट्स, nothing should stop you. I'll cover up right from basics
प्रिंट कैसे करना है, वहीं से मैं शुरू करूंगा, बेसिक थिंग से कवर करूंगा. विल नॉट मेक एनी अजम्पशन कि अरे वी हैव अमन विद अस, ही हैज कंप्लीटेड ऑल द लैंग्वेजेस. तो मैं ये अज्यूम नहीं करूंगा अरे अमन को ये मालूम है तो हम आगे जाएंगे. वी विल गो अज्यूमिंग दैट यू डू नॉट नो एनीथिंग. अपने कोर्स का ऑब्जेक्टिव है ऐसा ही है कि वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर यू. इस अजम्पशन पे हम लोग आगे चल रहे हैं. एनी अदर क्वेश्चन? Okay. So no queries, so we can take the discussion further. Let's begin with our discussion. So we are starting with programming languages, and you all are here to learn programming language, isn't it? So our topic for today's discussion is introduction to Python. Okay, and with this initial introduction that we had, we may not have enough time to even cover up the introduction, but let's try and do that. Introduction to Python. So you are all here to learn programming language. So if you are here to learn Python, and if Python is a programming language, so what do you understand by this term called as programming language? आपके दिमाग में क्या आता है if everybody says programming language? What do you understand by this term programming language? Come on, quickly answer. Unmute yourself and answer. Especially those जो नए हैं प्रोग्राम में, उन्हें पहले कोशिश करनी चाहिए. And don't hesitate. कौन क्या कहेगा? आपके दिमाग में जो है आपका, एंड आई विल नॉट कॉल आउट योर नेम्स कि तेजस आंसर करो, स्नेहा आंसर करो, ये नहीं होना चाहिए. यू शुड योर, दिस इज द प्लेस लाइक वेयर वी इंटरेक्ट. तो सो डोंट हेजिटेट एंड गिव मी योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यस, कम ऑन, डोंट हेजिटेट. Or shall I call out the names? To code. Pardon? Sneha says, Sneha, come again, make a complete statement. Programming is to code. Programming is to code. But Mike, मेरा क्वेश्चन है, what is a programming language? ये मेरा क्वेश्चन है. What do you understand by programming language? तो आप कह रहे programming is coding. आपके हिसाब से ये है. Okay. What else? But that will raise another question. Then what is coding? ऐसा क्वेश्चन आएगा. We store some information. So Rohit says programming language is something that stores information. देखेंगे, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में. Okay, which is not the case. Okay, any other? Somebody also made an attempt to answer. To program softwares and to execute codes. Come again. To program softwares and to execute codes. So Sneha said coding, and Rohan says somebody else. What's his name? Okay, somebody answered like to program software to execute the code. Okay. Dhruv had a question. Dhruv, अगर क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछना चाहिए. अगर लेक्चर मिस किया तो आपको इस क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा. तो ध्रुव का क्वेश्चन है कि अगर लेक्चर मिस किया तो डोंट डू इट रेगुलरली. अगर किसी जेन्युइन रीजन से आप लेक्चर मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग साइट पे मिल जाएंगे, पर रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठिए. अगर रिकॉर्डिंग ही सुनना है तो मेरे पास पुराने लेक्चर के सारे रिकॉर्डिंग्स है, मैं वही आपको कोर्स भेज दूंगा. दैट्स नॉट द वे टू डू इट. मैं चाहता हूं कि आप एक समय इस लेक्चर के लिए आप डिवोट करें. कमिट योरसेल्फ कि मैं अल्टरनेट डे 1.5 घंटा लेक्चर अटेंड करूंगा. जब आप खुद होके समय दोगे, ऐसा नहीं कि जब सब कुछ सारे दुनिया भर के काम बन जाएंगे उसके बाद अगर कोई समय बचता है तो मैं पाइथन पढ़ूंगा, वो होने वाला नहीं है. डेडिकेट टाइम देना है पाइथन के लर्निंग के लिए, तब ये कोर्स कवर हो जाएगा. बट अगर जेन्युइन रीजन से लेक्चर मिस आउट कर जाते हो, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है. ओके, एनी अदर डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लाउडर. Programming language is a language which humans can understand, and it converts to a language which machines can understand. Okay, he says programming language is something that human can understand and which can be converted into a form that machine can understand. Okay, that's somewhere near to what programming languages are. Okay, any other? Okay, now what is the, yeah, somebody was making an attempt. Yes, programming language is one thing which is a communication to the computer, like okay, communication thing. Yeah, okay, used it to is something communicate that with can computer. Yeah, very good. That's quite near to the answer. Okay, now currently I'm speaking to in English. I could speak to in Marathi as well. I could speak to in Hindi as well. I could speak to in some other language that I know, which I may not be very proficient in. But language का purpose क्या है? For communication. So I want to get some work done from Abhishek. तो अभिषेक को मुझे कहना है कि अभिषेक जरा ये नोट्स, ये मशीन ऑन करो.
So I'll have to tell Abhishek, please put the machine on using some language that Abhishek understands. So I'm getting some work done by Abhishek by communicating, passing some message to Abhishek. So I want to communicate. So it's meant for communication between something. Natural languages that we use, English, Hindi, Tamil, Marathi, Kannada, they are used to communicate between humans so that we can get some work done. But this is an artificial language. This is not a natural language like English, Hindi, Tamil. It is an artificial language. Now, this language is not meant for communication between humans. It is a language which is meant so that we can, somebody said that we can talk to the machine and get some work done from the machine. So am I going to tell my laptop, please turn on, please turn off? ऐसे तो मैं बात नहीं कर सकता laptop से. If I want to my laptop to process some data, I may not be giving commands in that fashion. It may probably not understand English if I want to get some work done. So what is a programming language? Like in English, we have some set of words, and using those words, what we do is we create a sentence, and that sentence has a meaning that is understood by you. So in programming language also, every language will have a keywords. So think about keyword like a vocabulary of the language. जसं आपण मराठीत म्हणतो त्याचा शब्द संग्रह आहे आपल्याकडे. We have set of words. So the set of words, that's my vocabulary. So in programming language also, we'll have keywords. They will form the vocabulary of a language. In English, Hindi, every natural language, we have a grammar. Grammar dictates us how to form a sentence. So a sentence कैसे form करना है वो grammar है. So in programming language also, how to construct an instruction, there is a grammar, there is a syntax. So while keywords are like words in your natural language, syntax over here is like grammar of your natural language. So in natural language, say in English, there's a word called as up. It has a meaning. It has to be used in certain ways. Okay. तो अगर मुझे कोई sentence देना है कि अभिषेक please stand up, so that's the way to construct that particular sentence. That's a grammar, how to specify that, how to construct a sentence. So grammar tells you how to use those words which are present in that language. So here हमारे पास keywords है. How to use those keywords to form an instruction, that is what the language will tell us. So every language will have some set of words. Like in COBOL, if I have to display something on the screen, I'll say display. In C++, I may say see out. In Python, I'll say print. So हर एक language के पास अपना एक ऐसा command words रहेंगे. Those words have a meaning in that language. और उन words का इस्तेमाल करते हुए you can get your work done. It has a syntax. ये जो words है language के और ये जो rules है, using those rules will create instructions, and using these instructions we can get the work done from the machine. So we want to get some work done from the machine. To get the work done from the machine, now henceforth when I say machine, I mean the computer, electromechanical device. हमें इस machine से कुछ काम करवाना है, so we need to talk to the machine, we need to communicate with the machine. You cannot communicate with the machine in your natural language. If you want to get some work done from the machine, you want that machine to do some operations for you, you need to talk to the machine in the format that it understands. Programming language give you opportunity to give instructions to the machine so that you can get your work done. So it's an artificial language. It is not a natural language, it's an artificial language. And what is the purpose of this language? To control the behavior of the machine. And when I use the word machine, I mean the computer. So to get the work done from the computer, you will be using this. So programming language are nothing but they provide you a vocabulary and set of rules through which, using which you can get some work done from the machine. So that's what is programming language all about. Okay, somebody had a question. Abhishek, what is the question? Sir, we discussed that to communicate with the machine, we need a programming language. Correct. So, sir, why so many languages? Like, why Coming not a to single language? Coming to it. That's the next part. That's the next part. Okay, so we have these programming languages. But now, today, when you look at the market, look at that. हमारे पास एक लैंग्वेज नहीं है. हमारे पास COBOL है, ALGOL है, Fortran है, Lisp है, APL है, Prolog है. You may not even have heard the names of these languages. आपने क्या इसमें से सारे लैंग्वेज के नाम पढ़े? How many of you heard about a language called as Logo? गेम तो खेला रहेगा. Logo कितने लोगों ने देखा है? या Lisp, या Modula, या Pascal, COBOL. COBOL तो was very popular. There are so many different languages which are there. Okay. So Abhishek, आपका क्वेश्चन था so many languages. Any idea as to how many languages do you have, Abhishek? No, sir. Any guess? यहाँ देखो यही आपके सामने है. Any guess? Anybody wants to guess how many languages do we have? Programming languages? Abhishek says, why do we have so many languages? मैं पूछा कोई guess आपके सामने कितने languages रहेंगे programming languages? हम Python सीख रहे हैं, but यहाँ आपने देखा यहाँ C language भी था.
तो A to Z सारे लैंग्वेजेस है. यू हैव लैंग्वेज D, यू हैव लैंग्वेज R, यू हैव लैंग्वेज P. अरे सारे लैंग्वेजेस है. तो एनीबॉडी वांट्स टू मेक अ गेस? आर्या, क्या गेस करना चाहोगे कितने लैंग्वेजेस है? अभिषेक, आप ही बताइए. By seeing the picture, almost Kavya? more than 10 languages. By Almost- seeing the pictures, it is Okay. almost more than 10. ओके, बाय सीइंग द पिक्चर ऑलमोस्ट मोर देन 10. मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर किया A to Z सारे हैं, तो वो A to Z सारे हो गए, यानी वही 26-27 हो गए, और ये 10-1, तो 30-40 के ऊपर तो अभी गए हम लोग. यस और नो? Yes, sir. Okay, believe me, there are more than 2000 languages which are there. अब कहाँ से? Abhishek had a question, why do you have so many different languages? I am saying there are more than 2000 languages that are there in the market right now. A lot of universities, they just keep on creating the language of their choice. More than 100 नहीं, कहीं नजदीक नहीं हो आप सौरभ, 2000 के आसपास लैंग्वेज है. बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस जिनके नाम हमें पता भी नहीं है. Universities come up with a language, some professors design their own languages. क्या है? At the end of the day, any set of instructions which can get the work done from the machine is a language. हाँ, वो स्टैंडर्ड हुआ क्या, वो ग्लोबली यूज किया गया है क्या, वो सेकेंडरी है. कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास है, बट दैट इज नॉट व्हाट हिज क्वेश्चन वाज. हिज क्वेश्चन वाज, व्हाई डू यू नीड सो मेनी लैंग्वेजेस? अभिषेक, मुझे बताइए, आज मार्केट में व्हीकल्स है, यस सर. तो एक ही व्हीकल होना चाहिए, अलग अलग व्हीकल्स क्यों है अभिषेक? तो वो तो कमर्शियल इसका हो गया. अच्छा, उनको बेचना है इसलिए अलग अलग व्हीकल्स है? नहीं, अपना अपना ब्रांड सब लोग निकाल अच्छा, रहे हैं, अपना अपना तो- ब्रांड है, यानी हर एक कंपनी को अपना ब्रांड करना है, इसलिए अलग अलग व्हीकल्स है. एंड ऑल्सो कि अपडेटेड वर्जन रहता है हर एक व्हीकल, उसका मतलब जो लूप होल्स पहले व्हीकल में थे तो वो तो cover नया करते वर्जन हैं. लाते हैं. इज दैट व्हाट इज करेक्ट एवरीबॉडी? इज अभिषेक का जस्टिफिकेशन सबको सही लगता है? वो कहता है मार्केट में ना सब सारे कंपनियों को अपना एक नया वर्जन लाना है, इसलिए नए इतने सारे व्हीकल्स है. इज दैट द केस? Because every vehicle is made up for a specific task. Very correct. So Prashant has pinpointed thing. Every vehicle has a specific task. अगर मेरे पास एक टाटा का ट्रक है, तो मुझे मेरे आई वांट टू ड्रॉप माय किड टू अ स्कूल, आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग, मैं ट्रक लेके शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा. आई मे टेक अ कार और माय बाइक. एवरी व्हीकल हैव अ स्पेसिफिक पर्पस. कल मेरे घर का सारा सामान शिफ्ट करना है, क्या मेरे बाइक पे शिफ्ट करूंगा एवरीथिंग? नो, दैट इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. So in that case, I may take a truck or a tempo or something like that. Then I'll shift the entire luggage, the entire thing. But यही मुझे shifting करना था. From यहाँ से मैं UK shift कर रहा था, तो क्या मैं ट्रक में लेके जाऊंगा UK से? हाँ. Then I'll take a cargo plane. Look at this. Everything, and then tomorrow I want to go for a picnic. क्या कार्गो प्लेन में बैठ के पिकनिक में जाऊंगा, ट्रक में बैठ के पिकनिक जाऊंगा, या साइकिल पे पिकनिक में जाऊंगा? Probably that will not happen. I may take a charter flight. I may go ahead with some other airlines. कार्गो प्लेन में DFL के या किसी UBS के प्लेन में बैठ के थोड़ी ना जाऊंगा, या रेलवे के गुड्स ट्रेन पे बैठ के शिमला गया, ऐसा तो नहीं होगा. I'll take a राजधानी, I'll take up some गरीब रथ, some train, passenger train I'll take up. Point क्या है? As he correctly pointed out, for a different purpose, there are different types of vehicles that are there, and they serve some specific purpose. Likewise, हमें जो मशीन से काम करवाने हैं वो भी अलग है, वहां भी अपना पर्पस अलग है. So there is no one language that will solve all the problems. There is no one vehicle that will suit all the requirement. ऐसा कोई एक vehicle है क्या सारे requirement सर्व करेगा? आपके पास ट्रेन है सर, कुछ भी कर सकते हैं. पानी पे जा सकते हैं क्या? नहीं. हवा में उड़ सकते हैं क्या? नहीं. तो if I have to cross some distance, and that too there are 7 seas I have to cross, there is no way I can take a truck or a bus or something. I have to fly. But then there are some places where your aeroplane cannot reach. I want to go into Konkan area, somewhere in the jungle. My aeroplane will not reach and land in the jungle. I'll have to take a bike or I'll have to take my jeep or something like that to reach that particular place. Everything will have a specific purpose. There is no single vehicle that has been designed which can cater to all the requirements. So you cannot even design one language that can cater to all requirements. आपकी requirement अलग है, तो उस type के problems को solve करने के लिए एक particular language. And somebody said languages evolve. जैसे vehicles evolve होते हैं, पहले वाली जीप और आज की जीप में काफी सारा अंतर है. Today jeeps are very weird. तो ऐसे languages भी evolve होते हैं. I'll show you how Python has evolved over a period of time. Python के 10 से 15 अलग अलग वर्जन आ चुके हैं अब तक. They are constantly improving. But still there is some domain area. Domain मतलब एक ऐसा business problems को वो address करता है. It cannot be used for solving all the business problems. Let's take one example. कल अगर आप
एक रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज, अपने यहाँ का लोकमान्य हॉस्पिटल है निगड़ी में, दे हैव नाउ रोबोटिक आर्म्स टू परफॉर्म नी ऑपरेशन, नी सर्जरी के उनके बड़ा सा ऐड लगाया रहा है हॉस्पिटल के बाहर, ऑपरेशन परफॉर्म बाय एन रोबोटिक आर्म दैट परफॉर्म्स द नी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट का सारा ऑपरेशन रोबो करता है। अब उस रोबो को कंट्रोल करने वाला या रोबोटिक्स के लिए जो कोड है वो पाइथन में नहीं लिख पाएंगे, पाइथन इज नॉट मेंट फॉर दैट। जहां रिस्पॉन्स टाइम क्विकली चाहिए वहां शायद सी या C++ का इस्तेमाल किया जाएगा। कल जाके हम लोग कोई स्पेस शटल के लिए कोई कोडिंग कर रहे हैं, कल जाके आपको किसी मशीन के साथ इंटरेक्शन करना है, या कहीं हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास, मिलियंस ऑफ डेटा है और उसको प्रोसेस करना है, तो हर एक काम के लिए देयर इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे ट्रक है तो हमें कुछ कामों के लिए सपोर्ट मिलेगा, लाइकवाइज डिफरेंट लैंग्वेजेस विल प्रोवाइड यू सपोर्ट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। कल गेमिंग करना है तो क्या गेमिंग के लिए इज द पाइथन द बेस्ट लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं, Python is not the best language, although we can do gaming in Python. I'm going to give you a glimpse about how it can be done. क्या ये बेस्ट लैंग्वेज है क्या फॉर गेमिंग? नो, बिकॉज गेमिंग में ना रिस्पॉन्स टाइम कितना चाहिए? इफ आई गिव अ पंच टू अथर्व गेम में, सच्ची में नहीं, तो अथर्व शुड हैव अ चांस टू डॉज इट और इवन गिव अनदर पंच टू मी, तो वो तो रिफ्लेक्शन कितना फास्ट चाहिए, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं ये काम, तो रिफ्लेक्शन वो इंटरेक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए, ग्राफिक्स बढ़िया होना चाहिए, तो इन दैट केस शायद पाइथन यहाँ काम नहीं करेगा। Python has its own area जहां Python can be put to use, तो हमें पता होना चाहिए लैंग्वेज का एप्लीकेशन एरिया क्या है, या रादर उल्टा चलेंगे। ये नहीं कि मैंने Python पढ़ा है, सर आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम दीजिएगा मैं Python के थ्रू ही सॉल्व करूंगा, रॉन्ग। ये ऐसा हो गया, सर आप मुझे कोई भी टास्क दीजिएगा, मेरे पास एक ट्रक है, मैं ट्रक से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आई डू टेक दैट केयर ऑफ इट बाय यूजिंग द ट्रक, ऐसा नहीं होने वाला है। फॉर डिफरेंट थिंग्स you'll have to use different languages, tools. Likewise, for solving different problems, you'll have to learn different languages. ये चैलेंज है प्रोग्रामर के लिए, आपके और मेरे लिए। Not that Python cannot do it, not that मैं ट्रक से घूमने नहीं जा सकता दिल्ली, जा सकता हूँ। Is it the best way to go about? Is it the most economical way to go about? ये माइलेज देता है 2 किलोमीटर का, और ये ट्रक से मैं ड्राइव करते अकेला जा रहा हूँ, तो अच्छा है बाइक पे चला जाओ ना, माइलेज भी अच्छा आएगा, I'll have अपॉर्चुनिटी टू गो टू एवरी कॉर्नर ऑफ द ड्यूरिंग माय ट्रैवल। या सेफ्टी चाहिए तो कार ले जाऊंगा, आई विल नॉट टेक अ ट्रक जस्ट टू गो फॉर पिकनिक और समथिंग लाइक दैट। तो पॉइंट इज, it is not whether that language can be used to solve that problem. Is it the best language used to solve that problem? That's some question that you need to ask. फिलहाल आपको इन क्वेश्चंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एरियाज बताऊंगा जहां पाइथन इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कीप इन माइंड these are the immediate areas that you should know where Python can be put to use. ये दिमाग में निकाल दीजिएगा कि सारे प्रॉब्लम्स हम लोग पाइथन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। We cannot address to all the problems using Python as a language. There are some areas where it is best, there are some areas where it is not so good. There are other areas where other languages can be used. I hope that explains answers your question, Abhishek. Yes sir, thank you. Okay, so there are different languages and you need to know about it. एज ए डेवलपर ओवर पीरियड आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैं ये लैंग्वेज यूज करूंगा, ऐसा प्रॉब्लम आता है ये यूज करूंगा। शायद आपको लैंग्वेज आता भी ना हो, तो दो चॉइस है आपके पास, आइदर यू लर्न द न्यू लैंग्वेज बिकॉज दैट्स द बेस्ट लैंग्वेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, या फिर यू हायर अ रिसोर्स। आई टेक चिन्मय इज वेरी गुड इन दैट लैंग्वेज, से मुझे है ना वो रोबोटिक काम को हैंडल करना है, एंड प्रॉब्ली सी इज द बेस्ट लैंग्वेज टू डू दैट, और मुझे सी नहीं आता है, तो दो चॉइस है, या तो मैं सी सीख लूं या फिर मैं चिन्मय का हायर करूं और चिन्मय को कह रहे ये काम कर ले, गेट दैट वर्क डन फॉर मी बिकॉज यू नो सी लैंग्वेज, दिस इज द वर्क आई नो इट कैन बी डन थ्रू दैट लैंग्वेज, या आप मुझे करके दीजिएगा। दैट्स द वे टू गो अहेड। यू नेवर सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग अ लैंग्वेज दैट यू नो, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम सिलेक्टिंग द बेस्ट लैंग्वेज विच इज सुटेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के लिए जो बेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल है उसी का इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। Any other question? Okay, no questions, so we go ahead. There are so many languages. This language is quite new, isn't it? Yes or no? Python is quite new. इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, या आपको कोई पुरानी लैंग्वेज सीखनी है, पास्कल, कोबोल सीखना है अपने से किसी को? Yes or no? टिक मार्क करो अभी, yes or no पे। किसको कोबोल सीखना है इसमें से? कोबोल सीखने के अपने एडवांटेज है, आज मार्केट में कोबोल डेवलपर्स ही अवेलेबल नहीं है। अगर कोबोल सीखोगे तो यू हैव ह्यूज डिमांड, बिकॉज जो 2-4 सिस्टम जहां कोबोल यूज किया जा रहा है वहां कोबोल के डेवलपर है ही नहीं इस जमाने के, पुराने तो गए सब ऊपर। मेरे स्टाइल में नॉट गए, मेरे जैसे है, आई स्टार्टेड माय जर्नी विद कोबोल। ओके, तो यू वांट टू लर्न सम न्यू लैंग्वेजेस, करेक्ट, लैंग्वेजेस ऑफ टुडे जनरेशन। अगर आपकी ऐसी सोच है कि पाइथन कोई नया लैंग्वेज है तो यू आर मिस्टेकन।
Python is quite an old language, as old as C language. Yeah, C as or C नहीं, but C++ के जैसा. It was introduced by this fellow Guido van Rossum, and when 1990 की बात है, it came up as a university project, so it's definitely not a new language. इसका एक एडवांटेज है, आपको अगर न्यू लैंग्वेज है तो आज के जमाने में उसके एप्लीकेशंस बहुत है, तो आज ये पॉपुलर है. But it has been there since 1990. I remember the time in somewhere around 2005 or 2000 के आसपास, we used to say it's a dead language. I had learned this language early days, and then I felt I spent my time unnecessarily learning this language. शायद ये कोई यूज ही नहीं कर रहा है मार्केट में. But after 2005, we again started seeing the resurrection of this language. It started to slowly become popular. And 2015 के आगे तो पूछो ही मत. It has turned out to be one of the most widely used language. So it's a very old language. It came in even before Java came in. Java came in 1991. ये तो 1990 में आया हुआ लैंग्वेज है. It's a high level. अभी high level, general purpose. तो when I use the word high level means what? It's quite English like. ये ना ऐसा low level नहीं है जैसे ना assembly language होता है जहाँ machine instruction लिखने होते हैं आपको, jump and then RE some register number, ऐसा कुछ नहीं करना. English like print, input. It's like English. Anybody who doesn't know anything about programming, उसको भी मैं अगर कोड दे दूं तो you can make a very nice guess as to what is this instructions doing. It's a general purpose English like, high level है, English like commands है. So those who know a bit of English will find it very easy to understand what has been written over there. ये इतना आसान है पढ़ने के लिए, high level है. English like words use किए जा रहे हैं. I shouldn't even say English like words. Sometimes तो लगता है English like sentence ही है. So it's easy to read. It's not low level. Zeros और one की बात नहीं करने वाले हम लोग. We are not going to talk to the machine in the format the machine understands. हम लोग English का इस्तेमाल करके machine से बात करने वाले. It's a high level language. ये general purpose है. Means it is not designed to solve only one kind of problem. Multiple kind of graphics कर सकते हैं क्या? Gaming कर सकते हैं क्या? हाँ, gaming कर सकते हैं. Database को handle कर सकते हैं क्या? हाँ, database को handle कर सकते हैं. क्या आप इसके through scripting कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हो. क्या इसके through आप कोई web application बना सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हो. So this language has multiple applications. It's general purpose है. It can be used to develop desktop applications. It can be used to develop web applications. अलग अलग कामों के लिए लैंग्वेज यूज किया जा सकता है. लैंग्वेज हैव मेनी सपोर्टिंग टूल्स एंड आर फ्री एंड पाइथन प्रोग्राम्स कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर यू टू यूज पाइथन. कल अगर आप .NET यूज करने वाले हो और .NET फ्रेमवर्क अगर आपको यूज करना है तो विजुअल स्टूडियो वगैरह यूज करना चाहोगे तो देयर इज अ कॉस्ट दैट इज अप्लाइड ओवर देयर. पाइथन इज कंप्लीटली ओपन सोर्स, पूरा फ्री है, किसी को एक पैसा देना नहीं है आपको. ऑल द रिसोर्सेज व्हिच आर देयर आर फ्रीली अवेलेबल. पढ़ना भी है तो इसके जो रिसोर्सेस है ऑल ऑफ देम आर फ्रीली अवेलेबल व्हेन वी टॉक अबाउट पाइथन. अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बेस्ट प्लेस टू विजिट इज दिस python.org एंड यहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट दिस लैंग्वेज. तो लेट अस गो टू दिस पर्टिकुलर साइट दैट इज python.org टू सी यहाँ हमें क्या क्या मिलेगा. एंड दिस इज वन साइट दैट विल विजिट ऑलमोस्ट एवरी सेशन. हर एक सेशन में हम लोग यहाँ विजिट करेंगे. तो लेट्स कम टू दिस, दैट्स python.org. python.org. When you come to this python.org, एक तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा. सोर्स कोड चाहिए आपको तो वो देख सकते हैं. इंस्टॉल करना है पाइथन आपको तो आप वर्जन ले सकते हैं 3.9.7. ये जो भी चाहे 3.8 भी 3.10 भी आ चुका है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. आपका मशीन विंडोज है, लिनक्स है, उस हिसाब से आप डाउनलोड करो. आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको जॉब्स देखना है पाइथन में तो जॉब्स चाहिए पाइथन के तो जॉब्स python.org पे जा सकते जॉब्स भी ढूंढ सकते हो. लुक एट दैट, कितने सारे जॉब्स है. That's one reason. दुनिया भर के जॉब्स है, right from India to Germany to दुनिया भर के जॉब्स है. तो you have those who are like अभी. और जॉब्स देखने का एडवांटेज क्या होता है, जब हम लोग जॉब्स पे क्लिक करते हैं ना तो यार जॉब डिस्क्रिप्शन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता चलती है. तो पता चलता है यार लैंग्वेज पढ़ने पर मुझे क्या क्या आना चाहिए, ये सब कुछ आता रहेगा तो वो जॉब मैं कर पाऊंगा. तो दैट्स अनदर रीजन व्हाई शुड हैव अ लुक एट जॉब्स. नॉट कि कितने जॉब्स है, आप इमीडिएटली सीनियर पोजीशन पे तो नहीं जाओगे. हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जा सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए. सॉफ्टवेयर डेवलपर पे जा सकते हैं, फ्रेशर का जॉब अगर है तो हम लोग अगर देखें फ्रेशर का है क्या, 0 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है क्या, तो आपको क्या क्या चाहिए. डेटा स्ट्रक्चर चाहिए कह रहा है, उसके बाद आपको डेटाबेस भी आना चाहिए, उसके बाद आपको पाइथन लैंग्वेज और वेब फ्रेमवर्क आना चाहिए. तो इट विल गिव एन आइडिया कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए अगर करियर बनाना है हमें. तो दैट्स वन वेरी गुड रीजन व्हाई शुड विजिट दिस थिंग. ओके, जॉब्स है. देन फॉरगेट अबाउट जॉब्स. ये कौन कौन से एरियाज में यूज किया जा सकता है. ओके, बिग डेटा में है, फाइनेंस में है, ये जॉब्स भी है, सारे ये जॉब्स ही है एक्चुअली. कौन कौन से एरिया में, फाइनेंस की बात करें अगर हम लोग तो 11 जॉब्स इन फाइनेंस में, फाइनेंस डोमेन में भी इसके जॉब है. ये जॉब से हमें पता चलता है कौन कौन से एरिया में यूज किया जा रहा है.
मशीन लर्निंग में यूज किया जा रहा है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज किया जा रहा है, न्यूमेरिक प्रोसेसिंग में। एक्चुअली मशीन लर्निंग, न्यूमेरिक प्रोसेसिंग, ये जो एरिया है यहाँ सबसे ज्यादा पाइथन यूज किया जा रहा है। तो लुक एट दैट, 25 जॉब्स, ओके, मोर देन द अदर वंस दैट आर देयर, ओके, एंड दीज आर लेटेस्ट जॉब्स व्हिच हैव बीन लिस्टेड हियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, ये ऐसे आपको एक एक जॉब्स मिलेंगे। तो पाइथन कहाँ यूज किया जा रहा है, कौन कौन से इंडस्ट्री में, अगर आपको मुझे क्वेश्चन पूछना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, सी ओ हियर, ये आपको इमीडिएटली आइडिया देगा कि कौन कौन से डोमेन्स में पाइथन यूज किया जा रहा है। ऑल दिस पर्पस, टेस्टिंग में भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है आजकल पाइथन फॉर राइटिंग दो स्क्रिप्ट्स। अनदर 25 जॉब्स इन दिस थिंग। कैटेगरीज, क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं आप, ये वेरियस रोल प्ले कर सकते हो। तो यू डू नॉट रियली हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन, सर पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ कर सकते हैं, क्या कहते हैं। तो ये था पाइथन जॉब्स। इन एडिशन टू दैट, हमारे लिए अभी कोर्स के दौरान जॉब्स की जरूरत नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद जॉब्स की बात करने वाले, बट दैट्स गुड टू स्टार्ट। तो हमारे लिए डॉक्स है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिए है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ जाओगे तो आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, वेरी गुड ट्यूटोरियल है, सारे टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले वो सारे यहाँ है, उनके तरीके से एग्जाम्पल रहेगा, मैं मेरे तरीके से आपको यही टॉपिक समझाऊंगा। देन हाउ टू इंस्टॉल पाइथन देखना है तो वो भी देख सकते हैं आप। Okay, all those things are there, and for various versions which are there. ये 3.10, 3.11 अभी तक स्टेबल नहीं है, स्टेबल 3.9 है। तो we'll also for this course use 3.9। जब 3.10 स्टेबल हो जाएगा तो हम लोग उसे भी यूज करेंगे स्टेबल जाने पर। ओके, और पुराने वर्जन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, 2.7 वगैरह सब कुछ है। There are a number of things which are there. They will give the list of books which are there which you can use to learn Python. इसमें से कई सारे बुक्स फ्रीली अवेलेबल है, तो you can, I'll share with you कौन से बुक अच्छे है जो आप फ्रीली पढ़ सकते हैं। तो that's python.org। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है, हेल्प मिलेगा आपको, एवरीथिंग विल बी देयर व्हाइल यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज। सो दैट्स वन गुड रिसोर्स दैट इज देयर। तो यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, गूगल करते बैठना नहीं है, python.org पे जाना है। यू कैन डाउनलोड ऑल द स्टफ दैट इज रिक्वायर्ड। इवन इफ यू आर हंटिंग फॉर अ जॉब, python.org से शुरू कीजिएगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इज पाइथन? इट्स इजी टू लर्न, पावरफुल, जनरल पर्पस, ये तो हमने डिस्कस किया, बट ये लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इट ब्लेंड्स प्रोसीजरल, फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, कोबोल की लैंग्वेज की बात करें, कोबोल एक ऐसा लैंग्वेज था विच वाज मेंट फॉर डेटा प्रोसेसिंग। वहां हम लोग प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, सी, कोबोल, पास्कल, उस स्टाइल के प्रोग्राम्स हम लोग पाइथन में कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। फिर हमारे पास C++, जावा है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थे, उस स्टाइल का कोडिंग कर सकते हैं क्या पाइथन में? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग भी कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। देन आजकल लेटेस्ट फैशन है, फैशन मतलब फैशन नहीं कह सकते, ट्रेंड है ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। पाइथन में फंक्शनल कर सकते हैं क्या? हाँ। तो लर्निंग पाइथन विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी राइट द कोड इन द स्टाइल ऑफ 60s and 70s, इन द स्टाइल ऑफ 90s and 2000, एंड इन द लेटेस्ट स्टाइल। 60s और 70 का स्टाइल था प्रोसीजरल, 80s और 90s का स्टाइल था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और आज का स्टाइल है फंक्शनल। आप सारे स्टाइल में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई विल टीच यू इन दिस कोर्स, हाउ टू राइट द सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट स्टाइल से कोड कैसे लिखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से कोड कैसे लिखना है, और फंक्शनल स्टाइल से कोड कैसे लिखना है। वी विल लर्न ऑल दिस प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, यानी तीनों स्टाइल से आप एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, स्टाइल अलग है। आई विल टीच यू ऑल दोस 3 स्टाइल्स एंड टेल यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। कब कौन सा स्टाइल यूज करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो दीज आर वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट इट सपोर्ट्स, प्रोसीजरल, फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और एक साथ सब यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, वो भी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स। सम ऑफ यू हैव बीन अटेंडिंग विद मी अ डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। नॉर्मली अगर हमें बहुत बड़ा डेटा मैनेज करना है तो हमें बहुत कोड लिखना पड़ता है टू मैनेज दैट डेटा। तो इन दैट केस वी लर्न वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक वेक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, या ट्रीज, ग्राफ्स, इसके लिए कोड लिखते हैं हम लोग, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज। व्हेन इट कम्स टू पाइथन, जो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है, डेटा स्ट्रक्चर इज लाइक डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ अरेंजिंग डेटा इन द मेमोरी। पाइथन में रेडीमेड मिल जाएंगे, आपको कोई कोड लिखना नहीं है। जहां सी प्रोग्रामर 150-200 लाइन का कोड लिखेगा तब उसके पास लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, पाइथन प्रोग्रामर 1 लाइन का कोड लिखेगा, लिस्ट रेडी आ जाएगी। So that could be the difference in number of lines of code that you need to write. जितना कम लाइन का कोड लिखोगे उतना अच्छा है, जल्दी काम बन जाएगा। So Python में ये जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स है, इनको आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि फॉर व्हाट पर्पस व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज टू बी यूज्ड। All those data structures are ready-made. You can use that data structure at any point whenever you require. You don't have to write the code for it. It's ready-made. You just have to understand कौन सा solution कौन से problem के लिए सही रहेगा। Python interpreter and extensive standard library are freely available in source or binary form on all major platforms on Python website. अब ये standard library जो अभी मैंने python.org पे दिखाया आपको, ये freely available है। Extensive standard library
are freely available in source or in binary form. So what I showed you right now with this python.org was the same thing. यहाँ जब हम लोग python.org पे आ रहे हैं, when you come here, यहाँ आने पर ये docs भी मिलेगा आपको, downloads. Yes, please. Website is not visible. अच्छा, website is not visible. Here I come. Is that visible? Yes, sir. यहाँ डॉक्स पे डाउनलोड पे आओगे तो डाउनलोड में व्हेन यू कम हियर ये आपको बताएगा कि आपको क्या है. सॉरी, कहाँ गया मैं? डाउनलोड्स में आए, यहाँ गए तो यहाँ पाइथन 3.7 कह रहा है. आपको उसका सोर्स कोड चाहिए या आपको उसका डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए? यू कैन डू दैट. यू कैन गेट द सोर्स कोड कि पाइथन कैसे उन्होंने लिखा है, पूरा पाइथन का इंप्लीमेंटेशन, लॉजिक भी देखना है उनका कोड, वो भी देख सकते हैं. या फिर पाइथन जो हमें यूज करना है वो आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो. यू कैन गो हियर एंड यू कैन डाउनलोड पाइथन जो बाइनरी में रहेगा, यूज करेंगे, देखना नहीं यार उन्होंने कैसे लिखा है. ऑल दोस थिंग्स आर इमीडिएटली पॉसिबल. यानी वो सिर्फ आपको पाइथन सप्लाई नहीं करते, दे आर ऑल्सो शेयरिंग विथ यू हाउ दे क्रिएटेड पाइथन. वो भी आपको चाहिए तो आप सोर्स कोड भी देख, उनका लॉजिक भी देख सकते हैं, हाउ द वर्क हैज टू बी डन. So all those things are immediately available when it comes to Python, and it works on all major platforms. ये all major platform का concept क्या है? आज currently I'm working in Windows. कोई जरूरी नहीं कि मैं हमेशा Windows पे ही काम करूं. तो अगर आप डाउनलोड्स में जाओगे तो देखो ये कह रहा है Windows, Mac, अदर प्लेटफॉर्म. अगर मैं अदर प्लेटफॉर्म पे जाऊं तो आपके सुना भी नहीं रहेगा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आपको Python मिल जाएगा. IBM का AS400 सीरीज, iOS पे रन करने वाला Python, OS 390 पे रन करने वाला पाइथन, सोलारिस पे रन करने वाला पाइथन, HP के मशीन पे रन करने वाला पाइथन, लिनक्स पे अल्टरनेट वर्जन्स, ऑल दोस वर्जन्स आर अवेलेबल. दैट मींस पाइथन प्रोग्राम कैन वर्क ऑन ऑलमोस्ट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आइए, उसके लिए पाइथन हमारे पास अवेलेबल है. इट कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. प्लेटफॉर्म की जब बात कर रहा हूँ, कोई भी हार्डवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, OS हो, उस पर पाइथन रन कर जाएगा. ऑलमोस्ट फॉर ईच ऑफ द हार्डवेयर यू हैव अ पाइथन व्हिच इज देयर. तो हम कौन सा पाइथन पढ़ने वाले हैं? तो बिकॉज व्हेन वी वेंट ओवर हियर, डॉक्स में जब गए हम लोग तो डाउनलोड्स में जाने पर अगर मैंने कहा ऑल रिलीजेस तो यू विल फाइंड देयर आर नंबर ऑफ रिलीजेस व्हिच आर देयर. कैन यू सी दैट? 3.8, 3.9, 3.7, 3.6, 2.7. कैन यू सी दैट? Yes, sir. ओके, कई सारे रिलीजेस है, दुनिया भर के रिलीज मिल जाएंगे. 2 से लेके सारे रिलीजेस मिल रहे हैं हमें. देयर आर सो मेनी रिलीजेस व्हिच आर देयर. नाउ व्हेन वी हैव सो मेनी रिलीजेस, हम क्या पढ़ने वाले? व्हिच इज द वन दैट वी आर गोइंग टू टेक? क्या हम लिनक्स, मैक, ये अरे कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, कोड तो वही रहने वाला है आपका. यू कैन ऑल्सो हैव डॉकर इमेजेस फॉर इट, दैट्स ओके. बट इतने सारे रिलीजेस है हमारे पास, वर्जन्स ऑफ पाइथन व्हिच आर अवेलेबल, एंड दैट ऑल इन्फॉर्मेशन इज ऑन python.org. यही आपको ये सारी जानकारी मिलेगी. तो व्हेन यू टॉक अबाउट सो मेनी वर्जन्स, तो ये 2 और 3 सारे वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल है. Python 2 एंड Python 3 आपको साइट पे मिलेंगे. बट अगर आपने ध्यान से देखा इस साइट पे, ये जो Python 2 की बात थी, ये देखे, ये एंड ऑफ लाइफ आ गया है. एंड ऑफ लाइफ मतलब इसके लिए आपको फ्यूचर में सपोर्ट नहीं मिलेगा. यू विल हैव सपोर्ट ओनली फॉर वर्जन 3 वाले को सपोर्ट मिलेगा. पाइथन 2 वाले को आगे जाके आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा. तो विल नॉट लर्न और फोकस टू मच ऑफ थिंग ऑन 2.7 because it has reached its end of life cycle. And in future you will not have support for these versions. Okay, but you can still use them. You can still download them and use them. ओल्डर वर्जन्स या नीचे देखिए 2.7 आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं. बट ये कब आया था? 2011 में आ गया था, 10 साल पहले आया था. तो इतना पुराना क्यों यूज कर रहे हो? आज जो लेटेस्ट आया हुआ है वो यूज करेंगे. अगस्त 30, 2021 यानी 2 दिन पहले. ओके, पाइथन 3.9.7 आ चुका है. क्यों ना हम लोग, ये स्टेबल वर्जन है, क्यों ना हम इसी का वर्जन का इस्तेमाल करें? तो देयर आर वेरियस वर्जन्स अवेलेबल इन पाइथन. एक नहीं, मल्टीपल वर्जन्स है अवेलेबल है. मोस्ट रिसेंट कौन सा है? तो 3.9.7 था. ये जो 2 वाले वर्जन थे, ये जनवरी 2020 में, पिछले साल ही उसका एंड ऑफ लाइफ साइकिल आ चुका है. तो उसको फ्यूचर में सपोर्ट नहीं रहेगा. तो अपना कोर्स विल बी ऑन Python 3. तो कोई पूछता है आपको व्हाट पाइथन यू आर लर्निंग, यू विल से Python 3. व्हाई Python 3? बिकॉज 3 के कोई भी वर्जन हो सकता है. 3.1 से लेके 3.10 तक सारे वर्जन हम लोग कवर करेंगे. द बिग क्वेश्चन इज व्हाई लर्न Python. अब इतने सारे 2000 लैंग्वेजेस है, उसमें से हम लोग Python क्यों पढ़े? दिस शुड गिव एन गुड आइडिया Python क्यों पढ़े. Python today, okay, in May 2021, यानी 4 महीने पहले बात, for the first time it has displayed Java to become the second most popular language in the world. पहले 3 रैंक पे सिर्फ Java, C, C++. इन तीनों को पिछले 20 सालों में किसी ने हाथ नहीं लगाया. The only challenger for Java, C, C++ today is Python. Python now has ranked just below C. आप सोचते रहोगे C? हाँ, C even today is the most popular language
उसके बाद आज पाइथन है और उसके बाद जावा है, बट रैंकिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले 25 सालों में सी एंड जावा एंड सी प्लस प्लस टॉप 3, सी जावा पहले 2 पोजीशन पे और सी प्लस प्लस 3rd पोजीशन पे, एंड पाइथन फॉर द फर्स्ट टाइम हैज मेड इनटू दैट टॉप 3 पोडियम पे पहली बार गया है। लोएस्ट पोजीशन पिछले 20 सालों में 13 पोजीशन पे गया था 2001 में, 10 साल पुरानी बात है। एंड इट हैज बीन द लैंग्वेज ऑफ ईयर इन 2007, 2010 एंड 2018। जब हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ ईयर, यानी उस साल में इट हैज सीन द बिगेस्ट जंप इन पॉपुलैरिटी, ये ऐसा है। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, आज सी सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, इसका मार्केट शेयर 13.38 है, पाइथन सेकंड है 11.87 है, जावा कई नजदीकी है 11.74। बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉप ऑफ 5 जावा विल प्रोबेबली डिस्प्लेस पाइथन अगेन, ऐसा हो सकता है, बट ये पहले 5 में आना इट्स अ चैलेंज। एंड सी, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, अगर आपको ये पहले 4-5 लैंग्वेजेस मालूम है, यू कैन मेक अ सक्सेसफुल करियर। यू कैन, आज सी का रैंकिंग परसेंटेज यूसेज कम हो गया है, अगर वो रीगन कर लिए तो दे कैन डिस्प्लेस पाइथन अगेन। तो पाइथन इज नाउ कॉम्पिटिंग विद सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, इस लेवल पे आ चुका है। इट मेक्स सेंस फॉर अस टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो अगर आप टॉप लैंग्वेजेस देखते हो, लुक एट द फर्स्ट 5 लैंग्वेजेस, सी, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, और बाद में जो कहते हैं ना आजकल रूबी पढ़ो, ये पढ़ो, अरे उनका मार्केट शेयर तो देखो 1.52%, और सी का देखो ये 3% ऐड करोगे 16%, जावा में 4% ऐड करोगे तो 15%। They are very, very popularly used. This figures that I had taken was in May, and right now we have gone far ahead. 5 महीने और हो गए। तो let's quickly go on to this site TIOBE and check what is the current status. इस महीने की स्टोरी क्या है? Let's quickly check it out. TIOBE index हम लोग ढूंढेंगे, और इस महीने की स्टोरी क्या है? Has it again come back the languages? तो we'll come to this TIOBE index and we'll just quickly check the index. अब देखते हैं लैंग्वेजेस में कौन कहाँ है। Let's have a look at it. Where, अरे I don't want to see the image, मुझे रैंकिंग देखना है। Here I go, मुझे रैंकिंग देखना है। तो I come to this rankings and watch it. कहाँ गया रैंकिंग? ये दुनिया भर के लैंग्वेजेस के नाम दे दे। देखो, look at the list of languages which is there. There are so many languages which are there. ये रैंकिंग कहाँ गया? Okay, let's have a look at it. Programming language definition, TIOB index, and I come to ranking. Here we come. तो top 20 देखते हैं। अभी भी C is the topmost language, followed by Python, followed by Java. ये कौन सा महीना है? अगस्त 2021 अभी। तो 1, 2, 3, 4 कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। नॉर्मली फर्स्ट 5 में कोई चेंजेस होता ही नहीं है। ओके, सिर्फ पाइथन ही नया आ चुका है उस टीम में, अदरवाइज फर्स्ट 5 लैंग्वेज वही है, सी, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, दे आर सेम। पाइथन गेन कर रहा है, सी प्लस में सी ने थोड़ा लॉस किया है रैंकिंग में पिछले 1 साल में देखा जाए तो। अगस्त 2020 से लेकर 21 में सी का -4 है, जावा भी कम हो गया है और पाइथन का बढ़ गया है। बट इफ सम न्यू वर्जन ऑफ जावा कम्स इन, इट विल अगेन ओवरलैप टेक ओवर पाइथन। बट लुक एट दिस, they are quite popularly used, 12, 11, 10, 7% and so on. और बाकी लैंग्वेज देखोगे ना, ये पर्ल, प्रोलॉग, गो, आर, लुक एट दैट, 1-2% के ऊपर उनका नंबर नहीं है। और नीचे जाके देखोगे, you will find other languages as well. Rust, it is said like people are saying it will replace C++. और कब रिप्लेस करेगा? इसका परसेंटेज शेयर तो देखो 0.5%। अब ये 0.5% ये इसे 7% में कब जाके रिप्लेस करेगा? So here, these are various languages, and you can see how the languages have evolved over a period of time. So do make a visit to this particular site. आपको पता चलेगा कौन सा लैंग्वेज कैसे आ रहा है। तो अगर जावा की स्टोरी देखते हो, तो there was time in 2002 में it was 26%, आज 26% से आज 12% पे आया है। That's okay. पाइथन की बात करते हैं, 2002 में कहा था, 2002 में पाइथन 1% था, and look at this, इसका ग्रोथ रेट तो देखो पाइथन का कब से स्टार्ट हुआ है। ये 2018 के बाद ग्रोथ देखो। Can you see that growth after 2018? Yes, sir. यहाँ से देखो, पिछले 2 सालों में पाइथन has like double, triple में उसका ग्रोथ हुआ है। So last 3 years has shown the 2018 में it was 2%, आज 2% से it has gone to 2% से today it has gone to 11%. 2 सालों में 2% से 11% तक ग्रोथ हुआ है पाइथन का। तो आज in this new areas of machine learning, data science, Python is becoming very, very popular. But yes, recent phenomena है। और बाकी तो आपके जो C, C++, जावा है, they are here to stay for a long time. वो कहीं जाने वाले नहीं है। ये C, C++, जावा कहीं जाने वाले नहीं।
तीन लैंग्वेज के जाने। तो अगर आप सीरियस प्रोग्रामिंग करने वाले हो तो हैव इन योर कार्ट कि आज अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो आगे जाके सी, सी प्लस प्लस, जावा अगर कर लोगे तो यू हैव कवर्ड अप ऑलमोस्ट ऑल द पॉपुलर लैंग्वेजेस व्हिच आर देयर इन द मार्केट। ओके, ये एक था एक ग्लिम्स। पाइथन आज पढ़ने में पॉइंट है बिकॉज देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर पाइथन इज सो वेरी वाइडली यूज्ड। इतने सारे जॉब्स आ रहे हैं पाइथन में, अगर आप जॉब का सर्च भी करोगे ना, जॉब्स इन पाइथन, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी हाउ मेनी जॉब्स आर देयर। तो अगर हम लोग सब गूगल करते हैं या किसी साइट पे जाते हैं, जॉब्स के साइट्स पे, तो जॉब्स इन यूएस, अगर ऐसा भी हम लोग कुछ ढूंढ लेते हैं जॉब्स इन यूएस, और कोई उनकी साइट वगैरह देख लेते हैं, जॉब पोर्टल, यूएस जॉब पोर्टल, जॉब्स पोर्टल इन यूएस, ऐसा अगर हम लोग करते हैं, एंड देन अगर हम लोग वहां जाके कहीं ढूंढे यूएस रिक्रूटर्स, ओके, कोई साइट पे जाए, 11 वर्किंग साइट्स इन, और वहां हम लोग जॉब्स इन पाइथन वगैरह ढूंढे, यू विल इमीडिएटली फाइंड करियर बिल्डर है, ग्लासडोर है, इंडीड पे चलते हैं। चलो इंडीड पे चलते हैं, तो लेट्स गो टू इंडीड। गूगल, आपने यहाँ मॉन्स्टर वगैरह है, तो इंडीड जॉब्स पे चलते हैं एंड लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट, एक ऐसा सर्च, जॉब्स इन इंडिया देखते हैं, वर्ल्ड वाइड देखते हैं, एनीवेयर वी कैन सर्च। तो समझो जॉब सर्च इन इंडिया भी कर लिया, एंड यू आर लुकिंग फॉर पाइथन, एंड इफ यू लुक एट द जॉब्स इन पाइथन, जरा नंबर तो देखो जॉब्स इन पाइथन का, यहाँ नंबर तो देखो कितने जॉब्स है, 30,000। और ये इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर आप ग्लोबली फाइंड करने जाओगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कितने जॉब्स रहेंगे। तो ये आज के करंट जॉब जो पाइथन में है, एंड सैलरी इज आल्सो गुड काइंड ऑफ थिंग। ये कह रहा है I think I was disconnected. Here I come. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there are, look at the jobs which are there. More than 30,000 jobs which are there. Various profiles. तो हमें, मैं जॉब आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं जॉब्स में इंटरेस्ट नहीं है, नाइदर मैं चाहता हूँ कि आप इमीडिएटली जाके जॉब करो। वहां जाना है, देखना है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से क्या स्किल सेट्स की जरूरत है, मार्केट में जो चाहिए वो स्किल मुझे आना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, ये नहीं चलेगा कि मैंने ये किया इसलिए मुझे ये जॉब दे दो। नो, मार्केट में आज इंडस्ट्री को क्या चाहिए वो मुझे आता है कि नहीं है, वो हमें जानना जरूरी है। सो दैट्स हाउ यू प्रिपेयर फॉर अ सक्सेसफुल करियर। दैट गिव्स एन आइडिया व्हाट इज इन डिमांड। तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, जॉब्स देखो आपको पता चलता है क्या स्किल सेट्स आर इन डिमांड। सी कितना डिमांड में है, पाइथन कितना डिमांड में है, जावा कितना डिमांड में है। जस्ट लुक एट द जॉब्स, जॉब मार्केट, यू विल गेट एन ग्लोबल जॉब मार्केट। देखिएगा, सिर्फ इंडिया मार्केट मत देखिएगा, लुक आउट फॉर ग्लोबल जॉब मार्केट। यस अथर्व, कोई क्वेश्चन है? अथर्व, आई सी यू हैव क्लिक्ड ऑन क्रॉस। कोई डाउट है अथर्व? अथर्व कदम, यू हैव एनी क्वेश्चन? अरे रिस्पॉन्ड तो करो अथर्व, यस नो। ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने क्रॉस क्लिक किया है, तो क्यों किया है तो आपने बताना चाहिए मुझे। क्या सर ये नहीं समझ में आ रहा है, सो आप जो कह रहे हो गलत है, बोलो ना यार। आई विल एक्सप्लेन व्हाट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक अथर्व इज टू शाय टू टॉक। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हियर वी गो। We'll continue for another 5 minutes and then we'll stop. Okay, 8:30 we stop. So this was about the popularity which is there. Let's quickly look at features of Python. Why one should learn Python. We'll cover up this and we'll stop. Now, Kavya or somebody had asked me, if this is my first language, don't worry. Python is very easy to learn. अब Python market में क्यों popular है? Let's quickly understand. And with that features, we'll stop for today. It is very easy to learn Python. It's English-like. थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आपको आता है तो आपको पाइथन में कमांड समझ में आएंगे। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट आल्सो प्रोग्राम्स इन पाइथन। सो इट्स इजी टू कोड एज वेल एज टू रीड। लिखना भी आसान है और समझना भी आसान है व्हेन इट कम्स टू पाइथन। सो इट्स अ वेरी गुड चॉइस फॉर पर्सन हु स्टार्ट्स हिज प्रोग्रामिंग जर्नी। एज फार एज आई गो,
I have been teaching Python to students from standard number 7th and 8th के बच्चों को भी स्कूल में I have taught Python. I wanted to encourage them to know them more about programming, जरा interest develop करने के लिए. I have conducted session for school kids and going into school. We run a school as well. तो हमारे स्कूल में हम लोग Python भी पढ़ाते हैं for school 7th 8th standard में ही Python पढ़ाते हैं. They create games and other things by the time they are in 8th and 9th standard. And that's the fun way to learn Python. Easy to learn. Second thing is free and open source. आपको you don't have to pay a penny, एक पैसा भी किसी को पे नहीं करना है. फ्री अवेलेबल है, सोर्स कोड भी अवेलेबल है. तो अगर आपको देखना है कि पाइथन का लिस्ट वाला डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे लिखा है, यू कैन गो एंड सी द कोड, एंटायर कोड यू कैन सी. कोड देखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू यूज इट. बट अगर चाहते तो यूज देख भी सकते हैं. आपको आपका खुद का पाइथन बनाना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. फ्री है, ओपन सोर्स है, यू कैन चेंज द कोड एंड क्रिएट योर ओन पाइथन. फ्री है, इट्स ऑल ओपन सोर्स. लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, यू कैन बी अ कंट्रीब्यूटर टू पाइथन डेवलपमेंट, ऐसा भी कर सकते हैं आप. इट्स एक्सप्रेसिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्रेसिव का मतलब है यू राइट वेरी लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड एंड यू डू मोर. अब ये कम कोड लिखने का बहुत ज्यादा एडवांटेज है. एक तो कम, दैट मींस लेट मी गिव जस्ट अ सिंपल पैरेलल. इफ आई राइट 50 लाइंस ऑफ कोड इन सी टू गेट सम वर्क डन, बिलीव मी हम लोग 10 लाइन में काम खत्म कर सकते हैं पाइथन में. अगर सी के 50 लाइन का कोड की जरूरत है, पाइथन में 10 लाइन में वही काम कर सकते हैं. हाँ, उतना फास्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट 10 लाइन में वही काम हम लोग खत्म कर सकते हैं. इसके इमीडिएट एडवांटेजेस है, डेवलपमेंट टाइम विल रिड्यूस एंड डेवलपमेंट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. आज डेवलपर का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो कम समय में डेवलप हुआ तो कम सॉफ्टवेयर कॉस्ट पड़ेगा. सेकेंड, कम लाइन्स ऑफ कोड है तो टेस्टिंग भी तो कम करना होगा, तो ये मार्केट में हम लोग प्रोडक्ट जल्दी ला पाएंगे. इफ आई हैव अ टीम, मेरी एक टीम है, they are writing code in C++, another team is writing code in Python. एक ही जॉब दोनों को दिया है, पाइथन का काम जल्दी खत्म होगा. C++ वाले टीम अच्छा कोड लिखेंगे जरूर, बट उनको 2 महीने 3 महीने लगेंगे, ये हफ्ते भर में खत्म कर लेंगे काम. तो बिकॉज कम लिखना है, लेस लाइन मोर वर्क, तो यू राइट लेस लाइन्स ऑफ कोड एंड यू गेट मोर वर्क डन. दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाइथन. इट्स पोर्टेबल. दैट मीन्स आई हैव अ विंडोज मशीन टुडे एंड यू आर माई क्लाइंट, और आपके पास मैक है, दूसरे क्लाइंट के पास सोलारिस है, तीसरे पे के पास यूनिक्स है. मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है. माई कोड दैट आई राइट ऑन विंडोज मशीन इन पाइथन विल रन ऑन मैक मशीन, सोलारिस मशीन, HP मशीन, AIS मशीन, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर जाएगा. आई डू नॉट हैव टू राइट अ डिफरेंट कोड फॉर लिनक्स, डिफरेंट कोड फॉर मैक, कुछ नहीं. एक कोड लिखो किसी भी मशीन पे, इट इज गारंटेड टू रन ऑन एनी अदर मशीन. व्हाई इज इट वर्क, दैट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट सेशन. राइट वंस एंड रन एनीवेयर. ये स्लोगन जावा का हुआ करता था, एक बार लिखो और कहीं भी रन करो. पाइथन आल्सो सेज द सेम थिंग. यू राइट इट वंस ऑन व्हाटएवर प्लेटफॉर्म, you can run it on any other platform. That's the promise that Python provides. Portable है. Portable means you can carry your code to any machine and जहां वहां जाके वो रन करेगा. It is interpreted language. C++, जब कोड लिखते हो आपको उसे ट्रांसलेट करना था. किसी ने कहा था मशीन को समझने वाले फॉर्मेट में हमें उसे ट्रांसलेट करना है. पाइथन में ऐसा कोई ट्रांसलेशन का काम नहीं करते बैठना है. इट इज इंटरप्रेटेड कोड. वो एक लाइन को ही ट्रांसलेट करके इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर लेता है. ये ट्रांसलेशन सेपरेटली करने की जरूरत नहीं हमें when it comes to Python. It's an interpreted code. I'll talk more about this interpretation in the next session because this is where difference lies between Python and other languages. So how Python runs में I'll explain this point in more detail. But इसे compile करने की जरूरत नहीं है, यानी आपके हार्डवेयर को समझने वाले फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है. किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेफिनेशन के समय कहा था, आई थिंक इट वाज शार्दुल हु सेड कि वी कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू फॉर्मेट दैट द मशीन अंडरस्टैंड्स. यहाँ बिल्कुल ऐसे कन्वर्जन वगैरह में टाइम डालने की जरूरत नहीं है. There is some beautiful mechanism that is there, interpreted language का, which I'll explain in detail in the next session. It is object oriented. यानी object oriented से आप दुनिया में कोई भी चीज को describe कर सकते हैं. ये बहुत powerful feature है object oriented concept, and Python supports object oriented concept. In the course we'll learn, it gives you a power to describe anything that can be described in the real world. रियल वर्ल्ड में जो कोई चीज आप देखते हो जिसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, वो पाइथन से थ्रू भी डिस्क्राइब कर पाएंगे. दैट्स द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. पाइथन हैज अ सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इट्स हाई लेवल. ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है, इंग्लिश लाइक है. जिसको इंग्लिश आता है उसको ये पाइथन का लैंग्वेज पढ़ने में बहुत आसानी है. यू राइट सम कमांड एंड दैट विल डू मोस्ट ऑफ द वर्क फॉर यू. यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. तो आपको कोई भी काम करने के लिए खुद कोड लिखने की जरूरत नहीं है. देयर आर रेडीमेड फीचर्स विच आर अवेलेबल, उनका यूज कीजिएगा. डोंट वेस्ट योर टाइम री इन्वेंटिंग द व्हील. खुद कोड लिखने में टाइम से वेस्ट मत कीजिएगा. इफ देयर इज अ रेडीमेड सॉल्यूशन, यूज दैट एंड गेट योर वर्क डन. दैट इज व्हाट पाइथन डज. देयर आर द लाइब्रेरी इज ह्यूज. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करना है, देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड एज ओएस. आपको GUI बनाइए, आपके पास मॉड्यूल कॉल्ड एज टर्टल, या आपके पास है TK इंटर.
आपको नेटवर्किंग का काम करना है तो आपको नेटवर्किंग मॉड्यूल अवेलेबल है, आपको डेटा इंक्रिप्शन चाहिए उसके मॉड्यूल अवेलेबल है, आपको डेटा साइंस में कुछ काम करना है उसके मॉड्यूल्स अवेलेबल है। रेडीमेड सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, यू डोंट हैव टू राइट द कोड, यूज इट ऑफ द शेल्फ। अब पाइथन प्रोग्रामर के लिए चैलेंज क्या है, इतने सॉल्यूशंस अवेलेबल है कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है उसी में हमारा टाइम जाता है। यू डोंट हैव टू राइट द कोड इन पाइथन, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडीली अवेलेबल, यू डू नॉट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। ये एक्सटेंसिबल है, दैट मीन्स अगर आपके पास सी का कोई लाइब्रेरी है और उसे पाइथन के साथ इंटीग्रेट करना है, या जावा का कोई एप्लीकेशन उसको पाइथन के थ्रू रन करना है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, पॉसिबल है। योर पाइथन कोड कैन रन इन सी एंड सी कोड कैन रन इन पाइथन। ऐसा इंटीग्रेट कर सकते हैं पाइथन का मॉड्यूल और सी का मॉड्यूल, दोनों को हम लोग इंटरफेस कर सकते हैं, दे कैन टॉक टू ईच अदर। Very powerful concept. Different languages, but they can talk to each other. Python can talk to C, C++, Java. It can work with any of those languages. Extensible. It is embeddable. That means within C program I can write Python or embed Python in C++ or in Java. Java के अंदर Python लिख सकते हैं, Java के अंदर C++ के अंदर Python का कोड लिख सकते हैं. That's possible. You can embed Python in other language. You can interact with other language और एक language के अंदर दूसरा language के modules को भी हम लोग call कर सकते हैं. These are some of the biggest advantages of going in for Python. In the next session when we meet, we'll take this discussion further and understand more things about Python. ये जो Python कैसे रन करता है, that's also what we'll learn next time. इसके कुछ साइड डाउनफॉल भी है, यानी ये सारे एडवांटेजेस है तो इसका क्या कहते हैं ना, नेगेटिव पॉइंट भी है. One of the biggest downside of Python is speed. It is very slow as compared to your C, C++. इनके साथ आप Python को कंपेयर नहीं कर सकते. बट हर जगह स्पीड की जरूरत नहीं होती है. एवरी प्लेस यू आर नॉट गोना फायर अ रॉकेट जहां स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, वहां स्पीड थोड़ा बहुत कम रहेगा तो भी चल जाता है. स्पीड जहां C, C++ टॉक्स इन टर्म्स ऑफ नैनो सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स, ये हमेशा स्पीड की जरूरत नहीं होती है. हाँ, जहां स्पीड क्रिटिकल है वहां हम लोग शायद पाइथन यूज ना करें, बट जहां स्पीड क्रिटिकल नहीं है वहां ऑल दोस प्लेसेस कैन बी पाइथन. तो पाइथन का एक ही ड्रॉबैक है वेयर पीपल कंप्लेन इज स्पीड. It will not work as fast or nowhere near C, C++. आप कंपेयर ही नहीं कर सकते in terms of speed the Python and C, C++ को. It's just not comparable. So it's just not comparable. अगर आप कंपेयर करने जाए तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा ज्यादा डिफरेंस आएगा as far as C and C++, C and Python की अगर हम लोग बात करें तो just not comparable. अगर वो स्पीड की बात छोड़ दे then they are very good. Language is very good. Okay, so I can sometimes show you the difference in speed as well. किसी दिन मैं आपको difference in speed की भी कोई मैट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा, and those metrics should immediately give an understanding why one should think about going in for Python. एक ऐसा ही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके लिए उन्होंने किसी ने टेस्टिंग किया था, तो उस टेस्टिंग का जस्ट रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. जिस काम के लिए पाइथन ने कितना टाइम लिया और उसी काम के लिए एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम था, अलग अलग कॉम्बिनेशन डिजाइन करने थे. तो देयर इज समबडी हु रोट दिस पर्टिकुलर कोड टू डू वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस करने थे. तो उसके लिए पाइथन ने कितना समय लिया और सी ने कितना समय लिया, C++ ने कितना समय लिया. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर फिगर्स just to understand. When I say it is slow, I really mean it is slow. I really mean it is slow. So let me just reduce the size of it. Yes, please. What is the reason actually it is slow? Like why वो speed is क्वेश्चन not? अगले सेशन में. अभी how Python runs will answer why is it slow. अभी तक मैंने आपको Python कैसे रन होता है नहीं समझाया ना, ये Yes. इंटरप्रेटेड है कहा. तो ये Python कैसे रन होता है, when I tell you that you'll understand why is it slow. यानी हमें पता होना चाहिए Python सीख रहे हैं. ये देखो स्पीड में बात करें, अगर हम लोग ऐसा कोई कोड लिख रहे हैं जहां हम लोग ये 67 लाख कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो पाइथन को 61 सेकंड लगा है. तो अगर पाइथन ने 61 सेकंड का टाइम लिया है, C++ ने कितना टाइम लिया है? कैन यू सी दैट कोड? दिखाई दे रहा है स्टैटिस्टिक्स? Yes, sir. 2 सेकंड. जो काम C++ 2 सेकंड 3 सेकंड में कर पाएगा, पाइथन 61 सेकंड लेगा. अगर यहाँ हमने 10 करोड़ के कॉम्बिनेशंस करने हैं, पाइथन जहां ऑलमोस्ट 1000 सेकंड लेगा, वह C++ कितने सेकंड ले रहा है? 32 सेकेंड. 32 seconds. तो एक कंपैरिजन ही नहीं होता है इन दोनों में. यू कैन नॉट इवन कंपेयर देम. इतना ज्यादा डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस. बट हर जगह आपको ये परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है. आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम लिखा, कस्टमर है बिल प्रिंट करने का, आपका प्रोग्राम बहुत फास्ट काम कर रहा है. अरे मगर आपका प्रिंटर उतना फास्ट काम करने वाला है प्रिंटिंग का? तो वहां तो डिले होने वाला है ना.
तो आपका प्रोग्राम आपके प्रिंटर से फास्ट काम करे उतना काफी है ना, बिल प्रिंट तो करने के लिए उतना तो समय लगने वाला है, प्रोग्राम बहुत काम जल्दी करके रुकने ही वाला है, इट इज जब तक बिल प्रिंट करना हो जाए। तो देयर आर अदर थिंग्स आल्सो दैट विल मैटर, बट देयर आर सम केसेस वेयर स्पीड इज क्रिटिकल, तो वहां हम लोग पाइथन के बारे में नहीं सोचेंगे। बट जहां स्पीड क्रिटिकल नहीं है वहां पाइथन रूल्स द मार्केट। और आपका आज का ट्रेंड बता रहा है आपको पाइथन कितना पॉपुलर है और पाइथन को स्पीड अप करने के मैकेनिज्म्स है, एंड दैट इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू अटेंड द नेक्स्ट सेशन। Next session, we will understand how can Python speed up, how Python can, why Python works slow, ये समझ में आना चाहिए, and how can you speed up Python, Python को speed up करना है मुझे तो कैसे कर सकते हैं, उसके भी solutions available है। That is what our next topic is, how Python runs, how Python runs। तो एक ही drawback है Python का, speed, and we can improve the speed as we go ahead। I'll teach you how Python is very different than other language। अगला session shocker रहेगा आपके लिए, एंड स्पेशली जिनको प्रोग्रामिंग आता है उनके लिए शॉकर रहेगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लगे हाँ ऐसा ही रहता है शायद, बट जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं इनके लिए देयर विल बी सम सरप्राइजेस इन द नेक्स्ट सेशन। यू लर्न सम फैंटास्टिक अनइमेजिनेबल थिंग्स दैट आर देयर इन पाइथन। सो विल स्टॉप ओवर हियर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। समझ में आया है तो टिक कीजिएगा, नहीं आया है तो क्रॉस कर दीजिएगा। अथर्व तो पहले से ही क्रॉस करके बैठा हुआ है, बट अथर्व तो हाँ अथर्व अंडरस्टूड, गुड, थैंक यू अथर्व। तो फीडबैक चाहिए, यस नो पे फीडबैक देना है एवरीबॉडी। और इस बैच से आई हैव बीन टोल्ड कि आपको वीडियो भी ऑन करना है, बीच बीच में आपको मैं जिस दिन कहूंगा वीडियो ऑन करो ताकि मुझे पता चले आप सो नहीं रहे हो। कम ऑन, क्विक फीडबैक, यस और नो जो भी चाहिए फीडबैक दीजिएगा, बट फीडबैक चाहिए। इफ यू लाइक द सेशन गिव अ थम्स अप, डिड नॉट लाइक द सेशन गिव अ क्रॉस, देन वी कैन कम बैक टू यू। और क्यों नहीं समझ में आया आपको, क्या क्वेरी है मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ओके, एक्सपेक्टिंग एवरीबॉडी टू गिव अ फीडबैक। ओके, so we stop here today. Any queries you can talk to Monica madam, you can talk to Megha madam, you can talk to all our staff, you can talk to me. Okay, do wait for my mail where you will get some resources, download करके रखिएगा सॉफ्टवेयर्स जिनकी हमें जरूरत है, and after that I'll share some links with you जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। once your account is open on the e-learning portal, आपके साथ कंटेंट्स भी रहेगा, उसके पहले आपको एडमिशन लेना होगा। बट बिफोर यू टेक एन एडमिशन मैं आपको एक मेल भेजने वाला हूँ जहां से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख सकते हैं। क्रिएट योर इकोसिस्टम, अगली बार मैं आपको बताऊंगा हाउ पाइथन रन्स, एंड दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट देन अदर लैंग्वेजेस। सो दैट वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन। एंड राइट नाउ आई रिक्वेस्ट फ्रॉम माय ऑफिस, कैन ऑल ऑफ यू दोज हु कैन टर्न ऑन योर कैमरा। हम देख तो सके कौन कौन आया है। दोज हु कैन, दोज आर इन अ स्टेट टू टर्न ऑन योर कैमरा, प्लीज डू दैट। I would appreciate अगर आप कैमरा टर्न ऑन करोगे। थैंक यू काव्या, दैट शोज यू आर ईगर एंड यस, थैंक यू किरण, प्रवीण, आदित्य, शंभू राजे। डू योर फ्रेंड कॉल यू बाय द एंटायर नेम शंभू राजे, इतना बड़ा, या सिर्फ शंभू कहते हैं? सिर्फ शंभू कहते हैं सर। आई विल आल्सो कॉल यू शंभू। ये बहुत बड़ा नाम हो गया। नोबडी कॉल्स मी ऋषिकेश, इतने बड़े नाम से कोई मेरा दोस्त मुझे कॉल नहीं करता है, तो हम भी आपको शंभू नाम से पुकारेंगे। ओके, थैंक यू चैताली। Who is this VD? शॉर्ट नेम नहीं चाहिए, नाम चाहिए। I should be knowing who is that fellow. गोरख, मानसी, युवराज, अभिषेक, प्रणव, सरप्राइजिंगली सारे नए हैं आप लोग मेरे लिए। आदित्य, रोहित एंड अमन, ये दो ही मेरे एक स्टूडेंट दिखाई दे रहे। केतन था क्या? नहीं, केतन भी नया है लग रहा है। ऑल न्यू स्टूडेंट्स। ओके, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। I was there. Yeah, you were there, ना? That's what I felt. केतन था लग रहा था। मानसी, युवराज एंड राहुल देशमुख। ओके, सरनेम हम एक सरनेम भाई हम लोग, मैं भी देशमुख, राहुल भी देशमुख। ओके, अदर्स कैमरा ऑन करो। प्राची, ओके, आई वुड अप्रिशिएट। तो कीप योर कैमरा ऑन एंड आई वुड एक्सपेक्ट इस सेशन में हम लोग कैमरा बीच बीच में ऑन करते रहेंगे अनलेस आप मोबाइल पे हो। युवराज लगता है मोबाइल पे है, फिर भी सेशन अटेंड कर रहा है। ओके, सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, लेट मी नो यू ऑल्सो। मैं 2 दिन पहले रोहित को मिला, कई दिन में मेरे सेशन अटेंड कर रहा था, चेहरा देखा ही नहीं तो पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। तो इस बार मैं आपको जानना चाहूंगा, इंटरेक्ट करेंगे हम लोग, फेस से थोड़ा सा ना एक बॉन्डिंग बन जाता है। ये नाम से सिर्फ ऐसे ब्लैंक घोस्ट के जैसा बॉन्डिंग नहीं बनता है। तो बीच बीच में क्वेश्चन पूछना है तो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कौन बंदा है, कौन मेरा स्टूडेंट है। रास्ते में कहीं मिले तो हाय हेलो तो कर सकते हैं। ओके, या मुंह छुपा के चला जाओ तो पकड़ सकता हूँ मैं आपको कि अरे प्रवीण कहाँ भाग रहे हो। ओके, काइंड ऑफ थिंग। So thank you all for in the session. See you next time. Don't miss the session. अगली बार का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा, how Python runs. Okay. Thank you all. Yes, sir.
टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। एंड देयर Thank अगर you, कोई sir. किसको कोई सिंपल कोई Thank you, बात sir. करनी है